Welcome everybody. I am Hemant Agarwal, host and coordinator of webinar conducted by chshelpforum.com. This website is specifically relating to various issues that can be experienced in cooperative housing societies and will benefit both the managing committee as well as ordinary society members. It has very simple language articles, draft of applications, our earlier webinar videos, and more will be added as and when time permits. For your information, we have also created a WhatsApp group only for housing society related matters. Anybody wishing to join may WhatsApp may message to me. My number is already there on the screen. Also, for the record, I wish to put it and appreciate Advocate Fatima Fauzdar. CHS Help Forum had written to the cooperative department on 20th August to duly extend the AGM conducting date for financial year 2020-2021. We had written to them कि आप जो डेट है वो एक्सटेंड कर दो, सारी सोसाइटीज के पास में तैयारी नहीं है और सबको डिफिकल्टीज हो रही है, सबको टेंशन हो रहा है। तो हमने रिक्वेस्ट किया था कि 30 सितंबर 2022 तक एक्सटेंड कर दें और एडवोकेट फातिमा फौजदार ने प्रॉपरली रिप्रेजेंटेशन किया था लेटर के मार्फत से। वो लेटर अगर किसी को देखना है, हमने वो मंत्रालय में भी दिया था और कोऑपरेटिव कमिश्नर पुणे में भी ये लेटर दिया था। इसके बाद में इस पर एक्शन भी हुआ और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने एजीएम का जो कंडक्टिंग डेट है वो एक्सटेंड कर दिया हुआ है 31 मार्च 2022 तक का। सो आई विश टू specifically thank Fatima ji for Advocate Fatima ji for all such efforts. Welcome, sir, and thanks for your cooperation, sir. Most important is that. And there are two things to this particular thing. Statutory audit, that is statutory panel audit, is extended up to 31 December 2021, and AGM for current financial year, not current, that is the just that went by 2021 to 2021, मतलब 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 का जो एजीएम जो हमें टिपिकली 30 सितंबर 2021 को करना था, वो अब एक्सटेंड होके 31 मार्च 2022 तक कर दिया हुआ है। तो हमारे पास लगभग अभी 6 महीने और है इस चीज को अपना अकाउंट्स वगैरह व्यवस्थित करने को, एंड आई होप ऑल द सोसाइटीज इन महाराष्ट्र have benefited out of this thing. So once again thanks to Fatima Fauzdar ji, जिन्होंने काफी कुछ प्रयत्न किया, जाके आर्गुमेंट किया कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से और ये अचीव किया। Okay, carrying forward, all friends are requested to listen carefully without interrupting the speaker. Questions in very brief may be typed in the chat box. By the way, any participating members who wish to speak at our Saturday evening webinars and share their good or bad experiences of your society, any experts, any lawyers who wish to speak, support and motivate other members, may please contact me. I'll arrange appropriately all the things. Now, today's topic is corrupt administrators, how to remove the laws and the procedures thereon. I'll request everybody to mute their microphones. It's causing static. Okay, now to start with, before we start, I would like to describe a particular section, section 2, subsection 27, which means society, means a cooperative society registered or deemed to be registered under this act, this is the important thing, which is an autonomous association of persons united voluntarily to meet their common needs and aspirations through a jointly owned and democratically controlled enterprise and adhering to the cooperative principles and values. इस सेक्शन का मतलब ये होता है कि सोसाइटी फॉर्म किया हुआ है और फॉर्म होने के रजिस्टर होने के बाद में सोसाइटी इज एंटाइटल्ड to deal with its own affairs by its own persons, and it is not necessary, absolutely not necessary,
that the registrar interferes in the working of the society. So the section wording which is very, very important is which is an autonomous association of persons. Autonomous का मतलब है कि जो सोसाइटी चाहेगी वैसा होगा, लेकिन कानून के दायरे के अंदर, विद इन द पैरामीटर्स ऑफ द लॉ. लॉ क्या चीज है? MCS एक्ट, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, and the rules thereunder. Okay. Now, who are administrator or board of administrator? Board of administrator को हम लोग typically short form में बोलते हैं BOA. So, an administrator or board of administrators, board of administrators means minimum 3 persons that are nominated by the society amongst their own members. अगर एक सोसाइटी में 100 मेंबर हैं, 100 मेंबर्स में से आप किसी भी 3 मेंबर को नॉमिनेट कर दो, कि अनिल को नॉमिनेट कर दिया, सुनील को नॉमिनेट कर दिया, सुरेश को नॉमिनेट कर दिया, कि वी नॉमिनेट दिस 3 पर्संस as the board of administration. And the deputy registrar, if he receives a representation from the society signed by at least 1/5 members, then he has got no other option but to issue order appointing this board of administrator. और अगर एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हुआ है पहले से, तो उसका ड्यूटी है, लीगल ड्यूटी है, लीगल लायबिलिटी है कि एडमिनिस्ट्रेटर को तुरंत हटाओ और बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करो. वो क्यों करो? जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, सोसाइटी इज एन ऑटोनोमस एसोसिएशन ऑफ पर्संस. दे हैव टू बी डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड enterprise. So administrator or board of administrator are authorized representative duly appointed under sign and government seal of the local ward deputy registrar or assistant registrar or district registrar. डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार मुंबई के बाहर के तालुका लेवल पे वो पोस्ट वहां पे चलता है. अलग अलग तालुका, अलग अलग सिटी पैरामीटर्स अलग अलग है रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव लॉज के हिसाब से. सिंस दे आर अपॉइंटेड, सिंस दे मींस बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर और एडमिनिस्ट्रेटर, since they are appointed by a government authority. Government authority मतलब ये deputy registrar. They are classified as deemed government servant and covered under section 21 of the Indian Penal Code. Any physical or mental assault on an administrator मतलब deemed government servant. Administrator का मतलब administrator भी हो गया और board of administrator भी हो गया. आजकल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में एडमिनिस्ट्रेटर को अथॉराइज्ड ऑफिसर भी बोलने लगे, AO. सो ड्यूरिंग माय लेक्चर, इफ आई रेफर इज एज एडमिनिस्ट्रेटर, if I refer it as authorized officer, it means AO. If I refer it as BOA, then it means board of administrator. So any physical or mental assault on an administrator, that is the deemed government servant, is a very serious offense. They also become liable to reply to RTI applications. They means administrator, AO and BOA also. तो जब तक आपकी MC है कुर्सी पे, they are not liable to entertain your RTI applications. But अगर आपका admin है, AO है, BO है, then because they are deemed government servant, they become liable to reply to your RTI applications. अभी मैंने जब डीम्ड गवर्नमेंट सर्वेंट का मतलब समझाया, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप उसे मामूली से भी धमकी देते हो, देख लूंगा, या मेंटली आप परेशान करते हो, ऐसा कुछ भी, तो इनके पास में अथॉरिटी है पुलिस में जाके FIR करना, और पुलिस का ड्यूटी है इनका FIR नोट करके उस पर कॉग्निजेंस लेना, एक्शन लेना. सो अगर आपके सोसाइटी में अगर एडमिनिस्ट्रेटर या BOA या AO अपॉइंटेड है, अगर BOA अपने खुद के मेंबर्स भी है, तो भी वो BOA है और फिर भी दे बिकम डीम्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स, बिकॉज DR उनको अपॉइंट करता है अपने सही और सिक्के के अंडर में, तो दे बिकम डीम्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स. सो व्हाई आर एडमिनिस्ट्रेटर और BOA अपॉइंटेड? एडमिन और AO और BOA आर अपॉइंटेड फॉर वेरियस रीजंस. जैसे उदाहरण के तौर पे मिनिमम कोरम ऑफ MC मीन्स मैनेजिंग कमेटी. मुंबई शहर में जितना होता है, हम लोग उस चीज को, आई एम ए मुंबईकर, तो हम जितना होता है उतना शॉर्ट फॉर्म ज्यादा यूज करने की कोशिश करते हैं, और शायद आप लोग भी करते ही होंगे. सो मिनिमम कोरम ऑफ MC हैज फॉलन
beyond the bylaw prescribed limits, maybe due to death or resignation or disqualification or debarment for any reasons. One more reason is कि MC members, सारे में MC members ने एक साथ resign कर दिया हुआ, all of them have resigned together. तो जिसकी वजह से सोसाइटी में एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है. So a vacuum is created due to non-operation or refusal to conduct office by society managing committee. इसका मतलब ये हुआ कि सोसाइटी में मैनेजिंग कमेटी है, लेकिन वो मैनेजिंग कमेटी बोलती है कि भाई आप लोग हमको परेशान कर रहे हो, इसके लिए हम सोसाइटी की कामकाज नहीं करेंगे. सो कामकाज बंद है. एक और कारण है रिमूवल और डिसमिसल और debarring of MC by DR office. DR means deputy registrar for offences under section 77A, section 75, section 76, section 78, section 82, 82, section 88, 88. I'll explain about these sections later on. एक और कारण है एडमिन या BOA या AO का बिठाने का, इंस्टॉल करने का, कि इन न्यूली रजिस्टर्ड सोसाइटी वेयर द प्रोविजनल मैनेजिंग कमेटी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में PMC बोलते हैं, सबसे पहले जब शुरू होती है सोसाइटी, नई नई रजिस्टर होती है, तो इलेक्शंस नहीं होते, इसके लिए उसमें PMC अपॉइंट किया जाता है. तो PMC बैठी, वो भी काम नहीं कर रही है, या उन्होंने इलेक्शन प्रोसीडिंग्स का कार्यवाही शुरू नहीं किया हुआ है, इसके लिए भी वो उन्होंने अगर इफ दे फेल टू प्रोसेस प्रोसीडिंग्स फॉर इलेक्शन, तो भी एडमिन या AO या BOA को इंस्टॉल किया जा सकता. एक और कारण है टिपिकली जो नॉर्मल है मोस्ट सोसाइटीज में, कि सोसाइटी मेंबर्स आर नॉट अवेलेबल और डू नॉट वांट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन. आप सभी जानते हैं कि इलेक्शंस के टाइम पे मुश्किल से 2% से लेके 10% पब्लिक मेंबर्स इलेक्शन लड़ने के लिए आगे आते हैं, बाकी सब पीछे से तमाशा देखना चाहते हैं. उनको हिम्मत नहीं है, या तो वक्त नहीं है, या तो डर जाते हैं, और भी कई कारण, वो सब आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हो. एडमिनिस्ट्रेटर और AO और BOA may be appointed only in rare case of violations. Rare to rare case में मीन्स कितना भी वायलेशन हुआ हो सोसाइटी में, लेकिन DR cannot just simply directly appoint एडमिनिस्ट्रेटर. उसका काम है एडजुडिकेशन करना, पार्टियों को बुलाना, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म एक्टिवेट करना, दोनों को काउंसिल करना, और कोशिश यही करना कि MC बना रहे. सो हेंस एडमिनिस्ट्रेटर, BOA और AO may be appointed only in rare to rare case of violations. More specifically, since it is not the objective, this is important, यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है, it is not the objective of the government cooperative department to govern or manage the affairs of the society. गवर्नमेंट का काम नहीं है आपके सोसाइटी को एडमिनिस्ट्रेटर करना या मैनेज करना. हाउएवर मोस्ट करप्ट अथॉरिटीज, अगर 100 अथॉरिटी हैं तो लगभग 90 करप्ट अथॉरिटीज को हम, कम से कम मैं क्लासीफाई करता हूं करप्ट उनको अलग अलग तौर तरीके से. कोई काम नहीं करना चाहता है, कोई डिले करना चाहता है, वगैरह वगैरह वगैरह, वो भी सब आप लोगों को पता ही है. हाउएवर मोस्ट करप्ट अथॉरिटीज थिंक बायस्डली and prejudice themselves and abuse their authority and take sadistic pleasure in appointing administrator or AO in a way to promote corruption and discontent in the society. एक बार एडमिनिस्ट्रेटर या AO आ जाता है, एडमिनिस्ट्रेटर या AO authorized officer cannot be from your own society, but BOA can be from your own society members. तो ये क्यों किया जाता है ये भी सभी लोगों को पता है, फिर भी थोड़ा सा खुलासा कर देता हूं कि टू प्रमोट करप्शन एंड डिसकंटेंट इन द सोसाइटी. सोसाइटी मेंबर्स परेशान हो जाते हैं, बिलिंग्स ठीक से आती नहीं है, NOCs नहीं मिलते हैं, मेंबरशिप ट्रांसफर रुक जाता है, छोटे मोटे जो काम है सोसाइटी के वो सारे रुके रह जाते हैं. क्यों रुके रह जाते हैं वो भी मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं. नेक्स्ट पॉइंट इज द एडमिनिस्ट्रेटर और अथोराइज्ड ऑफिसर सेटिस्फाइड विद अप्रोक्सीमेटली 2500 रुपीज सैलरी जो उसको मिलती है, उसको अप्रोक्सीमेटली 2500 रुपए पर मंथ की सैलरी मिलती है. दैट, तो क्या वो सेटिस्फाइड है उस चीज से? ये भी स्वाभाविक तौर पे आप भी सब समझते हैं कि एक आदमी 2,500 रुपए में
आपकी सोसाइटी को एडमिनिस्ट्रेटर नहीं करता, वो भी अकेला बंदा, अकेला आदमी है। जबकि एमसी में आपका मिनिमम कोरम 6 लोगों का होता है, तो कम से कम 6 लोग वहां पे आपकी सोसाइटी को एडमिनिस्ट्रेटर कर रहे हैं या वहां देखभाल कर रहे हैं, एंड सो। और यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 250 रुपया वो सोसाइटी एडमिनिस्ट्रेटर को दिया, एओ को दिया, और उससे हम सारा कामकाज ले लें। टोटली गलत है, हमारा भी सोचना गलत है, और एडमिनिस्ट्रेटर का भी सोचना क्या गलत है वो भी मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ। सो टिपिकली द एडमिनिस्ट्रेटर और एओ jumps at the chance to be appointed as an administrator or AO in a society, even for a paltry sum. Paltry sum मतलब चिल्लर पट्टी, जिसको चाय पानी बोलते हैं, sum of 2500 rupees per month, simply because he thoroughly knows, he absolutely knows that मैं एक बार सोसाइटी में जाता हूं तो वास्ट स्कोप ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स कितना मैं कर सकता हूं, किस तरह करप्शन कर सकते हैं, ये मैं एक अर्लियर वेबिनार में आपको मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। आप हमारे वेबसाइट पे जाओगे तो करप्शन हाउ इट हैपेंस करके आप देख लीजिएगा। अलग अलग तौर तरीके हैं करप्शन करने के, और वो तरीका काफी हद तक सक्सेसफुल भी रहता है। आपकी एमसी भी करप्शन करती है, आपका एडमिनिस्ट्रेटर भी करप्शन करता है, आपका एओ भी करता है, और आपका बीओए भी करता है, क्योंकि उनको पता है कि मिस अप्रोप्रिएशन फंड्स, मिस ऑपरेशन फंड्स का मतलब है मैं कितना पैसा खा सकता हूं और डकार सकता हूं, सो दैट यू कैन सक्सेसफुली मैनिपुलेट इन सच प्रॉब्लम प्रोन सोसाइटीज। एडमिनिस्ट्रेटर या एओ या बीओए क्यों अपॉइंट होता है कि सोसाइटी में प्रॉब्लम प्रोन सोसाइटीज, मतलब प्रॉब्लम प्रोन का मतलब है झगड़ा करना, ये बिचिंग करना, ये एक दूसरे के साथ में एक दूसरे के पीछे पड़ रहना, गाली गलौज करना, ये नॉर्मल है। इसको प्रॉब्लम प्रोन सोसाइटीज, रेगुलर कंप्लेंट जाते रहते हैं डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास में। एक सोसाइटी के 100 कंप्लेंट आते हैं, एक सोसाइटी के सिर्फ 10 कंप्लेंट आते हैं, तो जिस सोसाइटी का 100 कंप्लेंट आया उसको प्रॉब्लम प्रोन सोसाइटी क्लासीफाई हो जाता है। So he can successfully manipulate in such problem-prone societies wherein 100% financial records are in a haywire condition, and any such misappropriation of funds is usually not detectable and or ignored by higher authorities due to receipt of extraneous conditions. इसका मतलब है bribe, routinely received through such administrator के थ्रू रिसीव होता है, और by AO. In many literally non-detectable cases, one single administrator or AO is appointed for more than 10 और societies. एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेटर जिसको 2500 पगार मिल रहा है खाली, वो लगभग 10-15 सोसाइटी मैनेज करता है। कानून में वो परमिसिबल नहीं है, बट चूंकि हम लोग साधारण लोग हैं, इस पे हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। कौन से कानून के अंडर में एडमिनिस्ट्रेटर या एओ या बीओए अपॉइंट किया जा सकता है? एडमिनिस्ट्रेटर और एओ और बीओए कैन बी अपॉइंटेड बाय लोकल war registrar, that is the deputy registrar or assistant registrar, for offences or violations of section 77A, 75, 76, 78, 78, 82, 88। ये सारे सेक्शन ऐसे हैं जिनके अंडर में एडमिनिस्ट्रेटर या बीओए या एओ अपॉइंट किए जा सकते हैं। ओके, Are administrators or AOA or BOA usually appointed on merit basis? No, that is not. Merit basis पर इनका अपॉइंटमेंट कानूनी तौर पे लाजमी होता ही नहीं है, और होता भी है कैसे होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। Most administrators, AOA, BOA are appointed due to egoistic infighting by some committee members and some aggrieved members. Corruption and false orders are usually the norm in issuing
Such corrupted and false orders, things or disputes can be easily settled, बहुत आराम से settle हो सकता है, or sorted out between the infighting members by involving other prudent persons of the society. Prudent persons means जो सभ्य है, शांत है, पेशेंस वाला आदमी है, मैनेजिंग कमेटी में नहीं है, बड़े बुजुर्ग हैं, जैसे हमारे पुराने जमाने में हुआ करता था, उसी तरीके से हो सकता है। और ये चीजें सोसाइटी में हो रही है, आज भी हो रही है। मैं इस चीज को मैनेज भी कर रहा हूँ, आप भी मैनेज कर सकते हो। इट इज नॉट ए वेरी डिफिकल्ट थिंग, और बहुत आसान है ये चीज। हाउएवर वो उससे सेटिस्फाई नहीं है, मेरा काम नहीं कर रहा है वगैरह वगैरह, तो वो दूसरा एडमिनिस्ट्रेटर करता है, और फिर ये ईगो लेता है कि देखो मैंने पहले मैं एमसी को डिसमिस कराया, फिर सेकंड एडमिनिस्ट्रेटर को भी निकाल दिया, और अब मैंने थर्ड एडमिनिस्ट्रेटर को भी ले आया मैं। कई इंसिडेंसेस है ऐसे। ओके, नाउ members ignorantly hallucinate that administrator or BOA or AOA has the same powers as an elected MC. Most disputant aggrieved members feel or think that once an administrator or AOA or BOA is appointed, then member can take any work from them or dictate to them, which is legally not possible. Legally, this administrator is bound and liable by the registrar's appointment orders to do only, note only, routine day-to-day affairs of the society. उसके एडमिन ऑर्डर में वर्ड्स लिख के कंपल्सरी उसको लिखना ये चीज क्यों? I'll explain that. So this appointment order of the admin has to be mentioning routine day-to-day affairs of the society, and the work of admin is restricted only to do those things mentioned in a cooperative department notification that was issued on 3rd July 2019. कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन इश्यू किया। ये सब जो धांधलेबाजी गपालेबाजी होने लगी, तब डिपार्टमेंट ने बोला कि भाई एडमिन का काम सिर्फ और सिर्फ ये चीज है, मीन्स गिन के 5-6 आइटम दिया हुआ, बाकी और कोई चीज एडमिन नहीं कर सकता है। सो एडमिन एक्सेट्रा आर नॉट ड्यूली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मेंबर्स। आपके एमसी मेंबर ने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेंबर्स का मतलब एमसी मेंबर्स, hence they cannot function as MC members. It is not the liability or work of government cooperative department to manage or govern the affairs of the society. The कानून ये प्रोवाइड करता है सेक्शन 2 में, सेक्शन 227 में, अभी नया जो सेक्शन आया 154B, उसमें भी यह वर्णन दिया हुआ है कि law has provided that only MC, elected MC, can manage, govern all the affairs of a society and not the admin. Admin का मतलब अब BOA भी हो गया, AO भी हो गया. However, over the years, because of ignorant or apathetic and corrupt admins or AOA or BOA or authorities even, this was grossly perverted, leading to further disputes and discontent in a cooperative movement. अभी हमारे पास अगर उसका नॉलेज नहीं है तो वो एडमिन बोलता है कि नहीं मैं तो ये भी कर सकता हूँ, मैं तो वो भी कर सकता हूँ, नहीं उसके पास अथॉरिटी नहीं है वो चीज करने का। ये शायद उनको पता है या नहीं पता है, लेकिन गवर्नमेंट के निर्देश के अनुसार ये चीज फाइनल है। नेक्स्ट पॉइंट इज, कैन सोसाइटी ऑफिस हैंडओवर बी अवॉइडेड और रेफ्यूज्ड? जैसे अभी एडमिन ने डीआर ने ऑर्डर निकाल दिया एडमिन का, तो क्या सोसाइटी बोल सकती है कि नहीं भाई हम आपको हैंडओवर नहीं करते? आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको हैंडओवर तो करना ही है क्योंकि अपॉइंटमेंट ऑर्डर इज फाइनल एंड इररिफ्यूटेबल। लेकिन अगर आप प्रॉपर स्टे ऑर्डर ले आते हो हायर अथॉरिटीज से, मुंबई में हायर अथॉरिटी इज द डीजीआर, डिविजनल जॉइंट रजिस्ट्रार। So on refusal to hand over charge, the registrar is bound to issue another order under section 80, where police action of break and seize proceedings can be initiated
अगेंस्ट द एमसी टू टेक ओवर कंट्रोल ऑफ सोसाइटी ऑफिस। इसका मतलब ये हुआ कि एडमिन है या एओ है या बीओ है, इट कैन obtain पुलिस प्रोटेक्शन टू ब्रेक द लॉक ऑफ द सोसाइटी और सारे रिकॉर्ड्स रजिस्टर्स को सीज कर लेना। एक पंचनामा की प्रोसीडिंग्स होती है वो करने के बाद में। व्हाट आर द पावर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर और बीओए? एडमिनिस्ट्रेटर और बीओए इज ए टेम्परेरी गेस्ट। जैसे अपने घर में मेहमान आए, चाय पानी नाश्ता किया, घर खाली कर दो, सो वो एक टेम्परेरी गेस्ट है, कोई परमानेंटली नहीं है कि चलो ठीक है मेरा बेटा आया है तो 2 साल भी रहेगा तो भी इट इज ओके। सो admin is a temporary guest with specific purpose and limited purpose authority to conduct only routine day-to-day affairs of the society. This means making payments of routine nature specifically only for those expenditure that is reflected in the society audited statement of income and expenditure. आपका सोसाइटी का जो प्रीवियस ईयर का ऑडिटेड स्टेटमेंट देखेंगे तो एक बैलेंस शीट है, उसका नेक्स्ट पन्ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर है। अब वो कौन सा खर्चा है, तो एक्सपेंडिचर साइड, मतलब लेफ्ट में एक्सपेंडिचर साइड है और राइट में इनकम साइड है। तो वो कौन सा एक्सपेंडिचर कर सकता है? ये ऑडिटेड स्टेटमेंट में जो लिखा हुआ एक्सपेंडिचर जो पहले हो चुका है, सिर्फ उसी हेड के अंडर में वो एक्सपेंडिचर्स कर सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पे लिफ्ट का एएमसी देना है तो वो चेक करेगा, दे देगा। पानी का बिल भरना है, बिजली का बिल भरना है, पगार पानी देना है, वगैरह वगैरह। Irrespective of any criteria, circumstances, the BOA or admin or AO cannot conduct any type of expenditures on its own violation. मतलब खुद के डिस्क्रिशन या खुद के डिसीजन से कोई भी खर्चा, नया खर्चा नहीं कर सकता। आपके आई का मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जो मैंने आपको बताया अभी कि ऑडिटेड स्टेटमेंट में मिलेगा आपको, वो जो एक्सपेंडिचर का लिस्ट है वो अभी एडमिन या बीओ या एओए कैनॉट कंडक्ट एनी न्यू मेंबरशिप ट्रांसफर्स और एंडोर्समेंट्स। एडमिन और बीओए कैनॉट अपॉइंट न्यू मैनेजर और सुपरवाइजर। आपका जो एग्जिस्टिंग मैनेजर है, अगर उसका पगार 4,000 रुपया पर महीना है, किसी कारण से उसने वॉलेंटरली छोड़ दिया हुआ है या ड्यूटी नहीं कर रहा है, तो वो उसे हटा के उसी पगार के आसपास में नया मैनेजर रख सकता है। लेकिन एडमिन अगर ये बोले कि नहीं, पुराना मैनेजर हटा के मैं अपना मैनेजर रखूंगा, उसके पास में वो अथॉरिटी नहीं है। एडमिन कैनॉट कंडक्ट एनी टाइप ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब चलो लिफ्ट गिर गई है, चलो कंपाउंड वॉल गिर गया, चलो प्लास्टरिंग करना है, पेंट करना है, वगैरह वगैरह। ये सब वो कैपिटल एक्सपेंडिचर खुद के दम पे, खुद के डिसीजन से नहीं कर सकता। सो इन अदर वर्ड्स इट मीन्स कि एडमिन कैनॉट कंडक्ट एनी टाइप ऑफ नॉन रूटीन एक्सपेंडिचर। नॉन रूटीन का मतलब क्या हो गया? वो जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अगर वो हेड ऑफ अकाउंट नहीं है तो वो सारा नॉन रूटीन एक्सपेंडिचर हो जाता है। अब एडमिनिस्ट्रेटर का स्पेसिफिक ड्यूटी क्या है? एडमिनिस्ट्रेटर एओ और बीओ, उसका स्पेसिफिक ड्यूटी क्या है? उसका वेरी वेरी स्पेसिफिक ड्यूटी है एज पर डिसाइडेड इन द कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन डेटेड 3 July 2019. So as per this cooperative department notification dated 3 July 2019, admin or BOA on taking over charge of society is limited to and dutifully liable only for A, conduct only routine day-to-day affairs of the society. Day-to-day क्या है मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। चेक एग्जिस्टिंग बायलॉ, पहले जो बायलॉ है सोसाइटी में, डिपार्टमेंट की तरफ से जो बायलॉ मिला है वो नहीं, आप जो बाजार से खरीदते हैं वो नहीं। आपका एग्जिस्टिंग बायलॉ का मतलब है आपका एग्जिस्टिंग बायलॉ पे रजिस्ट्रार का ठप्पा होना चाहिए, स्टैंप और सील होना चाहिए, वो आपका अप्रूव्ड बायलॉज है और सिर्फ आपको वही चेक करना है। बाजार में जितने भी नॉन ठप्पे वाले बायलॉज मिल रहे हैं वो आपके लिए टोटली यूजलेस है, उसे आप मत रेफर करिए। सोसाइटी में अर्जी दीजिए, बायलॉज की कॉपी दो, बायलॉ के अंदर प्रोविजन है 100 रुपया दे के उनको सर्टिफाइड कॉपी आपको देने का प्रोविजन है बायलॉज में, आप ले सकते हैं। बायलॉज में अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन लगता है तो आप डीआर को या सोसाइटी को लिख के उसे आप अप्रोप्रिएटली चेंज भी करा सकते हैं। सो ये 2 काम हो गए एडमिन के। तीसरा काम है
check society's INJ registers and share certificate books and prepare election list. ये मेन काम है एडमिन का, एडमिन एओ बीओए. Prepare election list of eligible members based on this register. Based on this register का मतलब ये नहीं है कि मैं ऐड कर दूं उसके अंदर और फिर उसको बेस करूं. मैं जिस तारीख को अपॉइंट हुआ, मैं अगर अपॉइंट हुआ है 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को आईजे रजिस्टर निकालना है, जो नाम वहां पे उस बेसिस पे एलिजिबल मेंबर्स के लिस्ट प्रिपेयर करना है फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन. चेक एंड प्रिपेयर एक और फंक्शन है उसका, जो डिपार्टमेंट ने बोला है आपको कि ये चीज कर सकता है एडमिन. उसमें से एक फंक्शन है चेक एंड प्रिपेयर लिस्ट ऑफ डिफॉल्टर मेंबर्स, सर्व देम रिकवरी नोटिसेस. आपके बैलेंस शीट में चेक करना है, बिलिंग हो रहा है आपका मंथली या क्वार्टरली, उसको चेक करना है. उसको लगेगा कि 3 महीने के ऊपर मेंबर का ड्यूज हो गया, उसको रिकवरी नोटिस इश्यू करने का उसको अधिकार दिया हुआ है. तो उसका नेक्स्ट अधिकार है या ड्यूटी है, लेट अस से, टू ऑब्टेन इलेक्शन ऑर्डर्स फ्रॉम द डेप्यूटी रजिस्ट्रार. और जिस दिन तक इलेक्शन नहीं होता है तो इंश्योर दैट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर हेल्ड इन द सोसाइटी. मतलब उसके रहते रहते उसे ये देखना है कि कोई घपालेबाजी नहीं हो रही है, कोई डरा धमका नहीं रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह. ये होने के बाद में उसका नेक्स्ट ड्यूटी है हैंड ओवर प्रॉपर चार्ज ऑफ ऑल अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर्स टू द न्यूली इनकमिंग इलेक्टेड एमसी. ये इलेक्शन हो गया, रिटर्निंग ऑफिसर ने आपको सर्टिफिकेट दे दिया कि ये आपकी मैनेजिंग कमेटी है, उसने एक और सर्टिफिकेट दे दिया कि ये आपके ऑफिस बेरर्स हैं. एमसी की मीटिंग बुलाएगा, ऑफिस बेरर सेलेक्ट करेगा और उस ऑफिस बेरर्स और किसी को नहीं, सिर्फ उस ऑफिस बेरर को वो ये सब चार्ज देगा. चार्ज देने का थोड़ा सा एक बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड तरीका है, बट सिंपल है, नॉट कोई डिफिकल्ट काम नहीं. लास्ट काम है exit the society after filing proper report to the DR office with copy of this report to the new duly elected MC. Next, can administrator dictate, admin का मतलब हो गया AO भी आ गया, BO भी आ गया, dictate or direct or threaten society members? No, the admin has no authority to issue any directives or notices directly to member, क्योंकि उसका वो रूटीन डे टू डे फंक्शन में नहीं आता है. रूटीन डे टू डे फंक्शन में उसका जो देना दिन हर रोज का कामकाज का जो खर्चा पानी है, बस सिर्फ वही करना है. एडमिन में प्रिपेयर ए रिपोर्ट ऑफ एनी मिसयूज और एब्यूज फ्रॉम द न्यूसेंस कॉजिंग सोसाइटी मेंबर एंड सबमिट इट टू रजिस्ट्रार for his further directions and action. जब वो रिपोर्ट सबमिट कर देगा डीआर साहब को, तो डीआर साहब का काम है उस रिपोर्ट पे एक्शन लेना और एडमिन को डायरेक्ट करना कि आप ये फला फला एक्शन लो. अब एक्शन डेप्यूटी रजिस्ट्रार के मर्जी के मुताबिक होगा या डेप्यूटी रजिस्ट्रार उस मेंबर को शो कॉज नोटिस इश्यू करेगा बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ द एडमिन. नेक्स्ट, पहले था कैन एडमिनिस्ट्रेटर डिक्टेट और थ्रेटन सोसाइटी मेंबर्स. अब है कैन सोसाइटी मेंबर्स डिक्टेट और थ्रेटन द एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह वगैरह. नो, सोसाइटी मेंबर हैज नो अथॉरिटी टू इश्यू एनी डायरेक्टिव्स और नोटिसेस टू एडमिनिस्ट्रेटर और एओ और बीओए. एडमिनिस्ट्रेटर इज नॉट बाउंड टू लिसन टू सोसाइटी मेंबर्स. ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, इसको आप ध्यान से समझिए. एडमिनिस्ट्रेटर AO BOA is not bound to listen to society members and is bound to discharge his duties only as per specific directions of registrar. इसका मतलब यह है कि सोसाइटी मेंबर्स अपना सर पीट सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पर एडमिन AOA और BOA उनका सुनने का उनको कोई अधिकार नहीं है. तो आप उसको बोलोगे कि आप ऐसा करो, आप वैसा करो, लेकिन उसके कार्यकाल में, उसके जिम्मेदारी में ये सारी चीजें नहीं आती. एडमिनिस्ट्रेटर को या एओ को, नॉट बीओए, सिर्फ एडमिन और एओ को कितना पगार पानी मिलना चाहिए और ट्रैवलिंग अलाउंस मिलना चाहिए. बेसिकली इट इज नॉट कॉल्ड पगार, इट इज नॉट कॉल्ड सैलरी, इट इज ए, यू कैन से रफली यू कैन से इट इज ए रेम्यूनरेशन.
are determined and recorded in the administrator appointment letter. Typically, it is 2,500 rupees per month plus 500 rupees as conveyance charges plus other incidentals as may be required that he incurs during his working duty. Majority Majority of the ignorant or disputant complainant society members ignorantly and apathetically think that administrator must daily attend society office. ये तो मैनेजिंग कमेटी भी अटेंड नहीं करती है डेली, महीने में एक बार का उनको परमिशन है, मैं एमसी मीटिंग करो या वगैरह वगैरह करो, पर डेली अटेंड करना तो पॉसिबल ही नहीं है। छोटी सोसाइटीज में तो ताला बंद रहता है, मैनेजर भी नहीं होता है, तो ये तो बड़ी बात हो गई सोचना। तो उनको ऐसा लगता है कि 2,500 रुपए में एडमिन या एओ मस्ट अटेंड द सोसाइटी ऑफिस डेली। और इससे भी बड़ी बात ये है कि वो ये सोचते हैं कि एडमिन शुड कंप्लीट ऑल इनकम्प्लीट पेंडिंग वर्क लेफ्ट बिहाइंड बाय ऑल अर्लियर मैनेजिंग कमिटी मेंबर्स। मतलब अगर पिछले 10 सालों में अगर मैनेजिंग कमिटी मेंबर ने आई रजिस्टर या अकाउंट बुक्स या बैंक स्टेटमेंट्स रिकंसाइल नहीं किया हुआ है, सोसाइटी के सिंकिंग फंड, रिपेयर फंड और मॉर्गेज रजिस्टर्स अगर अपडेट नहीं किए हुए, तो वो ये चाहते हैं कि एडमिन या एओ या बीओ आए और वो सारे चीज अपडेट करे। इट्स वेरी फनी। Admin is legally not liable to comply with such ignorant or disputant complainant members, and neither can the registrar. Now, this is very important and very funny also. The registrar even cannot issue directions to admin or AO to daily attend CHS office for a chiller amount of 2,500 rupees. 2,500 rupiah divided by 30 is not even 100 rupees per day. Why cannot registrar issue directions to admin to daily attend? Because डिपार्टमेंट का ये जो डायरेक्शन से मैंने आपको जो लिंक छोड़ा हुआ है उसमें ये चीज कवर्ड नहीं है, तो रजिस्ट्रार के पास में भी अथॉरिटी नहीं है ये चीज कवर करने की। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैन गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर और AOA be appointed at the first instance? Strictly no. Government shall not appoint administrator or AO provided society members are available and willing to work as BOA, Board of Administrators। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कंप्लेंट जाती है, कोई वायलेशन हुआ है 76 में, 75 में, 82 में, 88 में वगैरह वगैरह, या मैनेजिंग कमेटी ने टोटल रिजाइन कर दिया है, तो डीआर का काम है सोसाइटी मेंबर्स को अप्रोच करना बाय कॉलिंग SGM अंडर हिज सिग्नेचर एंड सील थ्रू एन AO and ask the society members to nominate 3 people for BOA and then appoint them to run the society. Why? जैसे शुरुआत में मैंने बोला, सोसाइटी इज एन ऑटोनोमस बॉडी। सरकार का काम नहीं है आपकी सोसाइटी को गवर्न करना या चलाना। So this provision of is available under which section? It is available under section 77A bracket 1 bracket F bracket II Roman. Read the section 77A, उसमें clear cut लिखा हुआ है। So under this section, registrar is firstly bound to appoint BOA and not admin and not AO, and only when society members are not available or willing to work as BOA। मतलब अगर सोसाइटी के मेंबर्स बोलते हैं कि नहीं हमें नहीं काम करना है, यहाँ पे तो बहुत झगड़ा होता है और गाली गलौज होती है और मारपीट होती है, तो हमको नहीं आना है, कोई भी नहीं आता है, ओनली देन इस सेक्शन के हिसाब से रजिस्ट्रार इज अथॉराइज्ड टू अपॉइंट एडमिन और अथॉराइज्ड ऑफिस। लेकिन रजिस्ट्रार ये नहीं करता क्योंकि उसका खुद का भी उसके अंदर मतलब है। सिंस ए सोसाइटी हैज बीन ग्रांटेड ऑटोनोमस फंक्शनिंग अथॉरिटी, मतलब हम खुद ही अपनी सोसाइटी मैनेज करेंगे, एंड इज ए लीगली ए डेमोक्रेटिकली कंट्रोल एंटरप्राइज। कौन सा सेक्शन बोलता है ये? सेक्शन 227 2 ब्रैकेट 27 और 154B भी अपना जो अभी अमेंडमेंट आया, रेड विथ 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। द DR इज बाउंड टू एंश्योर दैट, बाउंड टू एंश्योर, लीगली बाउंड टू, उसकी ड्यूटी है टू एंश्योर दैट इंटरफियरेंस ऑफ कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट इज ग्रॉसली रिस्ट्रिक्टेड
and not interfere in the functioning of the society. सरप्राइजिंगली मुंबई हाई कोर्ट के एक स्पेसिफिक जजमेंट में ये चीज लिखा भी है कि डीआर शुड नॉट इंटरफियर इन द वर्किंग ऑफ द सोसाइटी अगर दूसरा कोई मीडियम अवेलेबल है तो। जैसे बीओए अवेलेबल है क्या? हाँ है। एडमिन या एओ अपॉइंट नहीं कर सकते आप। बीओए के लिए कोई सामने नहीं आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है तो सेक्शन में प्रोविजन है, ठीक है आप अपॉइंट कर लो। कैन बीओए बी अपॉइंटेड from amongst the society members? Yes, BOA can be appointed from amongst the society volunteering society members. मतलब सोसाइटी में से 3 मेंबर अपने आप को सेल्फ नॉमिनेट करते हैं या बाकी मेंबर बोलते हैं कि आई नॉमिनेट सुनील, दूसरा कोई बोलता है आई नॉमिनेट अनिल, आई नॉमिनेट सुरेश, और किसी ने प्रपोज बाय कर दिया और सेकेंडेड बाय कर दिया, पास हो गए, बात खत्म हो गई। सो वो 3 मेंबर अब आपके बीओए हो गए। इसका कंडीशंस क्या है लेकिन? बीओए शैल नॉट कंसिस्ट ऑफ प्रीवियस एमसी मेंबर जो अभी अभी रिजाइन किया हुआ है या जो अभी अभी डिसमिस हुए हैं या जो अभी भी डिबार्ड हुए हैं या अभी भी जो डिस्क्वालीफाइड हुए, क्योंकि ये सारे जब रिजाइन कर दिया तो आप बीओए में भी नहीं आ सकते हो, आपने रिजाइन सोसाइटी के एमसी से कर दिया हुआ। सो उनको नॉमिनेट भी नहीं किया जा सकता। बीओए में डिफॉल्टर मेंबर्स भी नहीं रखे जा सकते। बीओए में वो मेंबर भी नहीं आ सकते हु हैव बीन कन्विक्टेड, उनको खिलाफ एक्शन हुआ है 75 में, सेक्शन 75 में, 76 में, 82 में, 88 में वगैरह वगैरह। कैन बीओए बी पेड एनी रिम्यूनरेशन और ट्रेवलिंग अलाउंसेस? अभी तक कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने बीओए के लिए रिम्यूनरेशन वगैरह निर्धारित नहीं किया हुआ है, नॉट फिक्स्ड, hence they cannot be paid. However, with due written permission of registrar, the BOA is entitled to withdraw all incidentals and traveling expenses that may be incurred during its tenure. अगर BOA 6 महीना बैठता है या 2 साल बैठता है, 2 साल भी बैठ सकता है। प्लीज रिमेंबर, एक सेक्शन में ऐसा लिखा हुआ है कि 6 महीने के ऊपर नहीं बैठ सकता, बट वो पॉसिबल है, उस सेक्शन को सरकमवेंट किया जा सकता है। सो ये सारे एक्सपेंसेस जो है बीओए करता है, चाय पिया, बाहर ड्यूटी पे गया, नाश्ता किया, उसका भी एक्सपेंडिचर बीओए कैन विड्रॉ फ्रॉम द सोसाइटी, लेकिन ड्यूरिंग इट्स टेन्योर इन डिस्चार्ज ऑफ इट्स ड्यूटीज। फॉर एग्जाम्पल बीओए को रजिस्ट्रार ने बुलाया या बीओए रजिस्ट्रार के ऑफिस में गया। अब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाओगे तो आपको खुद भी पता है कि रजिस्ट्रार ऑफिस में आपका काम 5 मिनट में नहीं होने वाला है। वो आपको कोई प्रायोरिटी बेसिस पे आप आए हो तो वेलकम करके तुरंत आपका काम करोगे, ऐसा भी नहीं है। कई बार रजिस्ट्रार ऑफिस में नहीं होता है, कई बार वो छुट्टी पे होता है, कई बार वो मंत्रालय में मीटिंग में गया होता है, और कई बार वेट करना पड़ता है। 12 बजे बुलाया हुआ है, हो सकता है रजिस्ट्रार उनको एंट्री 5 बजे दे, तो इस दौरान अगर वो चाय पानी नाश्ता करता है बीओए, एडमिन, एओए, who is entitled to withdraw that particular cost which is classified as incidentals. So अगर BOA, एडमिन या AO अगर रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाता है या BMC ऑफिस में जाता है या कोर्ट जाता है, कोर्ट मतलब सिविल हो गया, क्रिमिनल हो गया, कंज्यूमर हो गया वगैरह वगैरह, या एडवोकेट के ऑफिस में जाता है या बैंक जाता है या जो भी कुछ है, वो अपना खर्चा विड्रॉ कर सकता है। खर्चा विड्रॉ करने के लिए बीओए के मीटिंग में वो खर्चा पेश किया जाए, स्टेटमेंट पेश किया जाए, बीओ के तीनों मेंबर्स उसको सैंक्शन करने और उसकी रिपोर्ट डीआर के ऑफिस में देने, ऐसे रिपोर्ट फाइल करनी। कैन ओल्ड एमसी मेंबर्स बी अपॉइंटेड एज बीओए मेंबर्स? आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, बट स्टिल ओल्ड एमसी मेंबर्स आर ऑटोमेटिकली नॉट एंटाइटल्ड टू बी अपॉइंटेड एज बीओए मेंबर्स। कई सोसाइटी में चुपचाप ये अपॉइंट कर दिए जाते हैं, मेंबर को पता नहीं, सो काम चलता रहता है। क्यों नहीं कर सकते? मोर स्पेसिफिकली ड्यू टू द रेजिग्नेशंस और दे हैव बीन डिसमिस्ड और डिस्क्वालिफाइड और डिबार्ड। सिमिलरली डिफॉल्टर मेंबर को भी बीओए में नहीं रख सकते। 154 बी 10 ब्रैकेट 4 रेड सेक्शन 154 बी -23 में डिफॉल्टर मेंबर को कमिटी मेंबर में रहने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग चीज है ये, कैन एडमिनिस्ट्रेटर और बीओए और एओ issue any type of NOC etc. to the members?
Administrator or BOA not being elected representatives have no legal authority to issue any type of NOCs for any purposes, including NOC for passport, ration card, transfer of electricity or gas meters, या property tax bills वगैरह वगैरह. However, member may apply to administrator or BOA, who in turn will have to approach the DR office, that is the ward registrar, and have the member's application duly endorsed with the signature of the registrar, and thereafter issue such mention NOCs after taking authority from the registrar. Can member demand any document from the society during the tenure of administrator, AO, or BOA? Members have got no right or cannot directly demand any document or dictate terms or demand any work from the administrator, BOA, or AOA, because he is appointed only for what? Specific purpose, limited purpose, routine, day-to-day affairs of the society. एडमिनिस्ट्रेटर या एओ का काम नहीं है कि सोसाइटी का डॉक्यूमेंट्स निकाले, उसको देखे, स्क्रूटिनाइज करे और फिर अपने सही में वो दे दे. उसकी सही इस कारण की इसलिए इनवैलिड है. उसको डीआर का परमिशन लेना है. डीआर ने अगर परमिशन दिया तो ही वो इश्यू कर सकता है. वेरी इंटरेस्टिंग चीज जो अभी डिपार्टमेंट ने भी ऑब्जेक्शन लिया इतने सालों के डिस्प्यूट के बाद में. इतने समय डिपार्टमेंट आराम करती रही, सोती रही, लोगों को परेशानियां होती रही, पर फिर भी अब जाके डिपार्टमेंट ने ये बोला कि एडमिन या एओ या बीओ डीम्ड कन्वेंस का कोई भी प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकता, रीडेवलपमेंट नहीं कर सकता, कोई भी प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकता, सेल्फ रीडेवलपमेंट का कोई भी प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकता. उसका कारण क्या है? क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द सोसाइटी, वो कौन है? इलेक्टेड एमसी मेंबर्स ही सिर्फ ये सारे डॉक्यूमेंट्स कर सकते हैं. अदरवाइज इवन द वार्ड रजिस्ट्रार हैज नो लीगल jurisdiction to conduct or sign any type of redevelopment or self redevelopment और डीम्ड कन्वेंस डॉक्यूमेंट्स. कोई भी डॉक्यूमेंट इन 3-4 चीजों के लिए रजिस्ट्रार के खुद के पास में ये पावर नहीं है. आपको आश्चर्य लगा होगा, पर हर अथॉरिटी के पास में एक लिमिटेड लीगल जुरिस्डिक्शन होता है. अब वो अगर जबरदस्ती करता है तो देन दैट मीन्स इट इज अब्यूज ऑफ हिज पावर्स. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैन एडमिन और बीओए और एओ कंडक्ट एनी प्रोसीडिंग्स फॉर मेंबरशिप ट्रांसफर्स? वो ये भी नहीं कर सकता, बिकॉज हिज पर्पज इज स्पेसिफिक डिफाइंड इन द डिपार्टमेंट्स नोटिफिकेशन कि आप सिर्फ इतना इतना काम कर सकते, दैट्स इट, और कुछ नहीं कर सकते. हाउएवर मेंबर में बिफोर दैट एडमिन और एओए और बीओए on his own discretion has no legal authority to effect any type of transfer of memberships. Scrutiny of membership transfer files is legally a complex work. उसमें कई चीजें देखनी होती है. नॉमिनेशन का डॉक्यूमेंट आया मेंबरशिप ट्रांसफर के लिए, वो नहीं कर सकते हो आप. गिफ्ट डीड आया, पहला वाला ट्रांसफर नॉमिनेशन के बेस पे हुआ है, नॉमिनी गिफ्ट डीड कर सकता है, वो भी आप नहीं कर सकते. उस पर लीगल कॉम्प्लिकेशंस है, लाइबिलिटीज है. एओए, बीओए, एडमिन आर ऑल टेम्परेरी गेस्ट, आते जाते रहते हैं. वो उनको कोर्ट कचहरी के मामले में आप नहीं बुला पाओगे, लेकिन एमसी मेंबर के लीगल लाइबिलिटी है. कुछ गड़बड़ किया, उनकी प्रॉपर्टी को कॉन्सिफिकेट करने का प्रोविजन है. आप कर लो गड़बड़, एमसी गड़बड़ कर ले. अगर ये पता चलता है कि आपने मिसचिफ किया हुआ है, बदमाशी किया हुआ है, न्यूसेंस किया हुआ है, तो आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है, सिविल कार्रवाई, क्रिमिनल कार्रवाई, और आपका प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है, लीडिंग टू इवन ऑक्शन ऑफ योर ओन प्रॉपर्टी. आई एम टेलिंग टू दिस एमसी मेंबर्स. हाउएवर अपने मेंबरशिप का ट्रांसफर करने के लिए आप वार्ड रजिस्ट्रार को अपनी अर्जी दें उसे, और उसे डायरेक्शंस मांगे कि भाई एडमिन को बोलो या बीओए को बोलो कि नया ट्रांसफर करके देंगे. अगर डीआर ऑर्डर दे देता है तो ही एडमिन या बाकी अथॉरिटीज उसे आई रजिस्टर में एंडोर्समेंट कर सकते हैं. अपने खुद के बलबूते पे, खुद के मर्जी से आई रजिस्टर में एंडोर्समेंट करने का काम एडमिन, बीओए, एओ को नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है.
Similarly, admin or BOA or AOA, because it is appointed for specific purposes, day-to-day routine affairs, it cannot conduct any major repairs. कोई भी major repairs वो नहीं कर सकता. However, इसमें एक त्रुटि है, लेकुना है, लूपहोल है कि अगर 1/5 members under provision of section 76, उसमें एक प्रोविजन है 1/5 members मतलब 20% मेंबर्स अगर एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देते हैं एडमिन को, बीओए को, एओ के, which should be duly endorsed by the registrar and thereafter call a special general body meeting, SGM, and carry forward the process of emergency repairs. इमरजेंसी रिपेयर्स, रूटीन रिपेयर्स के लिए आपको वेट करना है. तो ये कार्यवाही हो सकती है जिसके लिए इन अधिकारी के एडमिन, बीओए, एओ के कार्यकाल में सब कमेटी ऑफ मेजर रिपेयर्स बना सकते हैं अंडर सेक्शन 220 रेड विथ 154B19 और फिर वहां से अपना काम कर सकते हैं. अभी मानो आपके सोसाइटी में डीआर ने एडमिन अपॉइंट कर दिया, एओ अपॉइंट कर दिया, आपको पसंद नहीं है, 15 दिनों के बाद आप बोलते हो कि नहीं, ये तो खाने पीने का काम हो रहा है, करप्शन का काम हो रहा है, हम लोग अपना खुद ही मैनेज करेंगे, क्योंकि सेक्शन 227 में तो लिखा हुआ है ऑलरेडी कि हम अपना खुद कर सकते हैं. आई एम एन ऑटोनोमस पर्सन, आई एम एन ऑटोनोमस बॉडी. तो एक एप्लीकेशन, रिक्विजिशन एप्लीकेशन टू कॉल स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग अंडर सेक्शन 76(1) ब्रैकेट आई इन रोमन read with bylaw number 95 and 98, signed by minimum 1/5 members, मतलब 100 अगर मेंबर्स हैं आपकी सोसाइटी में तो मिनिमम टू मिनिमम 20 या ज्यादा मेंबर को साइन करके ये अर्जी रजिस्ट्रार को देना है विद ए स्पेसिफिक एजेंडा. एजेंडा का पॉइंट होगा टू अपॉइंट ए 3-member बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर. एजेंडा का टॉपिक ये होगा to appoint a 3-member board of administrator from amongst the society members. आपके खुद के अंदर से ही अपॉइंट करना है to replace the existing admin और authorized officer. ये आपका स्पेसिफिक एजेंडा होना चाहिए, ये वर्डिंग्स वेरी स्पेसिफिक होना चाहिए. ये रिक्विजिशन मिलने के पास बाद में डीआर रजिस्टरिंग अथॉरिटी के पास भी कानूनी तौर से कोई चारा नहीं है बट टू कॉल फॉर दिस एसजीएम, और उस एसजीएम में जितने भी अटेंडी जनरल बॉडी मेंबर्स होंगे, जीबी मेंबर्स, सो ऑन डे ऑफ द एसजीएम अटेंडी जीबी मेंबर्स में नॉमिनेट 3 members फ्रॉम अमंगस्ट देमसेल्व्स टू कॉन्स्टिट्यूट बीओए बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर एंड हैव इट रिकॉर्डेड प्रॉपरली इन द एसजीएम मिनट्स. एंश्योर, सेकंड पॉइंट इज एंश्योर दैट दिस एसजीएम इज ड्यूली रिकॉर्डेड. वीडियो रिकॉर्डिंग का भी एक सर्कुलर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने निकाला हुआ है, उसको भी आप यूज कर सकते हो. मेंबर्स अपने खुद के वीडियो रिकॉर्डर से या मोबाइल रिकॉर्डर से आप इस मीटिंग को रिकॉर्ड कर सकते हो, विच इज परफेक्टली लीगल. नोबडी कैन से नो टू यू टू रिकॉर्ड ए मीटिंग हेल्ड इन ए जनरल, मतलब पब्लिक प्लेस पे. बेस्ड ऑन द मिनट्स ऑफ दिस एजीएम, द वार्ड रजिस्ट्रार शैल बी फोर्स्ड, आई एम यूजिंग द वर्ड forced, to remove this administrator or authorized officer and issue orders appointing this 3-member BOA who will be from among the society members. चलो ठीक है, अभी हम लोग खुद ही आ गए, एडमिन बोर्ड हमने बना लिया, बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर. बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर में चेयरमैन नहीं होता है, लेकिन बोर्ड प्रेसिडेंट होता है, बोर्ड मेंबर 1, बोर्ड मेंबर 2 होता है, तो वैसे 3 ही मेंबर होंगे. अगर बीओए के लिए कोई नॉमिनेट नहीं हुआ उस एसजीएम में तो एडमिन और एओए कंटिन्यू रहेगा अगले 6 महीने तक, बिकॉज दोबारा ये एजेंडा नहीं ला पाओगे. देयर इज ए प्रोविजन कि वंस एन एजेंडा फेल्स देन दैट सेम एजेंडा कैन नॉट बी बॉट बैक फॉर द नेक्स्ट 6 odd months. दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर redevelopment process. So now importantly, BOA shall continue to conduct itself endlessly. एंडलेसली का मतलब है जब तक आप नेक्स्ट इलेक्शन नहीं कर देते, जब तक आप सोसाइटी का प्रॉपर चार्ज हैंडओवर नहीं कर देते. किसको हैंडओवर करना है? इलेक्टेड एमसी को, एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 77A.
रेफर कर लीजिएगा, बहुत से पैरामीटर से रीड कर लीजिए, बहुत आसान है, इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। तो BOA will continue to conduct itself endlessly till next elections are conducted। अगर आपके नेक्स्ट इलेक्शन 5 साल के बाद में कंडक्ट होते हैं, मानो ये कोरोना का पीरियड चलता ही रहता है, जैसे पिछले आपको ज्ञान, पिछले 2-2.5 साल से इलेक्शंस नहीं हुए सोसाइटी। सो अगर कोई एडमिन अपॉइंट हुआ है पहले या BOA अपॉइंट हुआ है, तो वो इट हैज टू कंडक्ट इटसेल्फ एंडलेसली। आप ये तो नहीं बोल सकते मेरा पीरियड खत्म हो गया, मैं सोसाइटी को ताला लगा रहा हूँ और जा रहा हूँ, पगार पानी नहीं देंगे, बिजली का बिल नहीं देंगे, BMC का प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देंगे, बिजली का पानी का पैसा नहीं देंगे, सोसाइटी को खड्डे में जाने दो। ऐसा तो हो नहीं सकता है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्शन कि यू हैव टू कंडक्ट एंडलेसली, जब तक आप हैंडओवर नहीं करते हो। अगर हैंडओवर आप 2 साल के बाद में करते हो तो भी 2 साल तक आपको, आपके पास कोई पर्याय नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, आपको कंटिन्यू करते रहना है। टेकिंग चार्ज फ्रॉम द एडमिन और AO, typically it is not a hidden fact that most administrators or AO are corrupt to the core and habitually indulge in corrupt practices, swindling and siphoning of society funds and whatnots। ये कोई नई बात नहीं है, इस पे बहुत सी इंक्वायरीज चल रही हैं, बहुत से मीन्स हजारों इंक्वायरीज चल रही है डिपार्टमेंट की तरफ से। सो ये कोई बड़ी बात नहीं है, और इंक्वायरीज कितनी सक्सेसफुल होती है नहीं होती है वो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट जाने। So before taking over charge from admin or AO, proper neutral auditor must be appointed to audit all the expenditure and documents, records and registers of the society during the tenure of this AO or admin। Law कानून allow करता है for the MC और BOA to take over charge from admin और authorized officer। उसके पास 30 दोनों का 30 days का पीरियड है। So ये 30 days में आप प्रॉपर ऑडिट करवाइए, उसके बाद में प्रॉपर सिग्नेचर लीजिए AO का उसके रिपोर्ट के ऊपर, और अंडरटेकिंग लिख लीजिए कि मैं मेरे कोई भी मिसचिफ या करप्शन या मिस अप्रोप्रिएशन फंड्स के लिए मैं जिम्मेदार होता हूं मेरे कार्यकाल के अंदर में। एक दो और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वाई ग्रम्बल, बैबल, बैबल मतलब बड़बड़ बड़बड़ करना, ग्रम्बल का मतलब है 4 आदमी मिल जाते हैं और अपने आपस में बड़बड़ बड़बड़ करते हैं, उसको ग्रम्बलिंग बोलते हैं। और बैबलिंग का मतलब खुद अकेले बैबल करते हैं। Why grumble or babble when administrator is appointed? Administrator या AO is not appointed for fun purposes. Admin is appointed when society is grossly mismanaged or members have complained about society mismanagement by MC, or it is because of infighting, bitching, non-cooperation amongst the members, and hence the ward registrar is forced to appoint admin। But in actuality, in almost all cases, the administrator is inadvertently, indirectly invited by the infighting egoistic member। जो लड़ाई झगड़े करने वाले जो लोग होते हैं वही इनवाइट करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर को। द एडमिनिस्ट्रेटर डज नॉट फोर्स हिमसेल्फ टू टेक ओवर द सोसाइटी ऑफिस। इसका मतलब ये हुआ कि एडमिन आके आपका जबरदस्ती सोसाइटी ऑफिस को टेक ओवर नहीं कर सकता है जब तक उसका अपॉइंटमेंट नहीं होगा, तो उसके खिलाफ कुछ भी बड़बड़ करना व्यर्थ है। सो द एडमिन डज नॉट फोर्स हिमसेल्फ टू टेक ओवर द सोसाइटी ऑफिस, बट व्हेन ही डज ही सीज एन अपॉर्चुनिटी। उसको एक मौका मिलता है, ढूंढ लेता है मौका वो तजुर्बे से, टू साइफन ऑफ और स्विंडल ऑफ फंड्स, डिमांड ब्राइब्स फ्रॉम फॉर इश्यूइंग NOCs जो वो नहीं इश्यू कर सकता है, और फॉर इलीगली ऑल्टरिंग और अमेंडिंग डिफॉल्टर मेंबर्स बिल्स, टेक्स इज कट। ये मैं अपने मन मर्जी से नहीं कह रहा हूं सर, ये ऑलरेडी ऐसे इंस्टेंसेस एक नहीं हजारों हो चुके हैं। सो वो अपना कट लेता है फ्रॉम ऑल AMC वेंडर्स। इफ द एडमिनिस्ट्रेटर इज ए चोर देन ही इज ए चोर बाय इन्विटेशन। आपने इनवाइट किया, आओ मेरे घर पे, मेरे घर पर आके जितना हो सकता है लूटो चोरी करो वगैरह वगैरह। ही इज इन्वाइटेड बाय द सोसाइटी मेंबर्स। आपस में लड़ाई झगड़ा किया तो आपने बोला एडमिन साहब आइए, हमारा परमानेंट गेस्ट बन रही है, हमारे सोसाइटी के अकाउंट्स को खाली करिए। ये आपका एक्चुअली पॉइंट होता है। सो मेरा ऐसा पर्सनली बोलना है कि देयर इज नो पॉइंट इन ग्रम्बलिंग और बैबलिंग और ब्लेमिंग द एडमिनिस्ट्रेटर। आप एडमिन के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटिंग अथॉरिटी मतलब DR को कंप्लेन कर सकते हैं। अगर DR में
एडमिन को या एओ को अपॉइंट किया हुआ है और उसके खिलाफ अगर स्टे लेना है तो सेक्शन 152 के अंडर में डीजीआर मतलब डिविजनल ज्वाइंट रजिस्ट्रार, मुंबई में डिविजनल ज्वाइंट रजिस्ट्रार है, वहां से आप प्रॉपर स्टे ऑर्डर ले सकते हो। लेकिन जब तक वो स्टे ऑर्डर नहीं आपके हाथ में आ जाता है, आप उसे प्रॉपरली एडमिन और डीआर को नहीं सर्व कर देते हो, तब तक एडमिन या एओ कैन नॉट बी स्टॉप्ड फ्रॉम टेकिंग ओवर चार्ज ऑफ द सोसाइटी ऑफिस रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर्स। इस संदर्भ में भी कोर्ट के छोटे मोटे जजमेंट्स भी हैं। लेक्चर को बंद करने के पहले मेरी सलाह ऐसी है कि प्रूडेंट सोसाइटी मेंबर्स को ये कोशिश करना चाहिए कि एडमिन या एओ अपॉइंट ना हो और बीओए अपॉइंट करने का प्रोविजन को एक्टिवेट करें, क्योंकि कानून इस चीज को 100%, 1000% सपोर्ट करता है। देयर इज अ प्रोविजन। सो डीआर के पास में अगर आपने प्रॉपर अर्जी दिया हुआ है तो ही हैज गॉट नो अथॉरिटी टू रिफ्यूज योर अर्जी एंड ही हैज टू अपॉइंट ए बीओए। आप एक ग्रुप बना लीजिए टू वर्क ऑन इमरजेंसी सॉल्यूशंस टू कीप द एडमिन एओ आउट ऑफ द सोसाइटी एंड इंस्टेड टेक assertive steps to appoint 3-member BOA among themselves। ये याद रखिए कि अगर BOA आप अपॉइंट नहीं कर पाए तो AO या एडमिन को आप बाहर नहीं निकाल पाओगे। ये सब क्यों करना है? लास्ट वर्डिंग्स, ये सब क्यों करना है? टू एंश्योर दैट सोसाइटी फंड्स आर नॉट साइफंड ऑफ। साइफंड ऑफ का मतलब धीरे धीरे चुपचाप निकाल देना, है ना। 10 रुपए का पेन खरीदा, बिल ले लिया 20 रुपए का, तो छोटा सा अमाउंट निकला, उसको साइफंड ऑफ की परिभाषा में आ जाता है। और स्विंडल्ड ऑफ। स्विंडल्ड ऑफ का मतलब है मेंबर बोलता है कि मुझे एनओसी चाहिए, उसको जल्दी है, उसको इग्नोरेंस है, एपैथी है, वो बोलता है कुछ भी ले लो साहब, मेरे को तो एनओसी अब आज का आज ही दो। तो एडमिन बोलता है, मन में सोचता है कि मेरे पास तो अधिकार नहीं है, लेकिन चलो ना ठीक है, इसे 5000 ले लेता हूँ। ये भी कई हजारों इंस्टेंसेस ऐसे हुए हैं और वो एनओसी इश्यू कर देता है। ये स्विंडलिंग ऑफ बोला जाता है। एएमसी वेंडर से पैसा निकाल लेना, सैलरी देते वक्त कुछ लोगों को ऐसा बोल देना कि सैलरी जल्दी चाहिए तुमको ना 5 तारीख के अंदर, तो मेरे को इतना देना होगा। ये सारी चीजें सोसाइटी में कामकाज रोकने का तरीका है बाय एग्रीव्ड और डिस्प्यूटेड मेंबर्स, और सोसाइटी के पैसे बर्बाद करने के तरीके। इस तरह के जो कंप्लेनेंट मेंबर्स होते हैं उनको ये कोई लेना देना नहीं है कि आपको क्या तकलीफ हो रही है। आई विल कंक्लूड फॉर टुडे। एनी क्वेश्चंस, प्लीज गो अहेड। Sir, I have a question, sir. यस एडवोकेट फातिमा जी, प्लीज गो अहेड। Sir, you said we should avoid appointing administrators, and the members itself should become the BOA and run the society. But sir, Yes, as of ma'am. now, the news is coming over that the local corporators and MLAs are going to be given the authority to interfere in the society matters. So then where does this leave the members, the original flat owners? Because every society, at least the old societies, they are a gold mine for the MLA and builders to exploit it. मैम, एक्सप्लॉइटेशन तो हम हर जगह देखते हैं। आप अगर चर्ची गेट के होटल में एक इडली सांभर ऑर्डर करोगे तो वहां पे आपको 30 रुपए में भी मिल जाता है, लेकिन सेम इडली सांभर आप उसी ग्रेड के होटल बोरीवली में ऑर्डर करोगे तो वो 50 रुपए होता है। इसको भी एक्सप्लॉइटेशन बोलते हैं। घर में भी एक्सप्लॉइटेशन होता है, हमारे बच्चे भी हमको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, आप भी अपने बच्चों को एक्सप्लॉइट करते हो, स्कूल में भी एक्सप्लॉइटेशन होता है। सो एक्सप्लॉइटेशन इज नॉट ए न्यू थिंग। नेक्स्ट, अगर मीडिया ने ये बोला हुआ है कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, प्लीज रिमेंबर, मीडिया को ऐसे न्यूज फैलाने में जो आनंद आता है और आपको जो ऐसी न्यूज पढ़ के आनंद मिलता है, उसका ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए आप ऐसी न्यूज को पढ़ो। लेकिन जब सरकार कोई सर्कुलर, नोटिफिकेशन या कोई जीआर निकालती है या एमसीएस एक्ट और रूल्स में बदलाव करती है, पब्लिश करती है, तो ही उस चीज को बिलीव करो, तब तक बिलीव करने की आवश्यकता नहीं। उदाहरण के तौर पे आपने सीएचएस हेल्थ फोरम की तरफ से एक अर्जी मूव किया
यस। मेरे रिक्वेस्ट पे आपने एक अर्जी मूव किया कि साहब एजीएम का तारीख एक्सटेंड करो, सारे सोसाइटियों को तकलीफ हो रही है, आप कितने लोगों को तकलीफ देना चाहते हो। तो आपने मेरे कहने पे एक एप्लीकेशन मूव किया, आपने वहां पे जाके आर्ग्यूमेंट किया, बड़बड़ किया, प्रेशराइज किया, सब किया, डिपार्टमेंट ने आपकी सुना, और अल्टीमेटली मंत्री साहब ने ये अनाउंस किया कि ठीक है भाई, तकलीफ हो रही है सब लोगों को, टेंटेटिवली हम 31 मार्च 2022 तक एजीएम करने की परमिशन बढ़ा देते हैं, मतलब 6 महीने का और परमिशन मिल जाता है। अब ये कैबिनेट मिनट्स में रिकॉर्ड हो चुका है। कैबिनेट मिनट आपको ध्यान होना चाहिए, सभी को ध्यान होना चाहिए, दैट इज फाइनल एंड इररिफ्यूटेबल। कैबिनेट मीटिंग मजाक मस्ती में नहीं बनती है। मंत्री ने जो बोल दिया वो बोल दिया फाइनल, क्योंकि बाकी मंत्रीगण भी बैठे हुए हैं वहां पे, अपोजिशन भी देख रहा है ये चीज, अपोजिशन पार्टीज वगैरह। तो मेरी सलाह ये है कि जब तक कानूनी तौर पे आपको सर्कुलर, नोटिफिकेशन, जीआर, डायरेक्टिव्स, एमसीएस एक्ट अमेंडमेंट, लॉ अमेंडमेंट नहीं हो जाता, ये सब चीजों पे आप बिलीव मत करो। और प्लस एक्ट साधारण व्यक्ति को, एमएलए, कॉर्पोरेटर्स एक्सेट्रा, these are people like you and me. Only they have been delegated authority to represent in the legislature. They cannot be representative to enforce the law. उसके लिए जुडिशरी रखा हुआ है पार्लियामेंट ने, कानून अलग से बनाया हुआ है। हम अपनी मर्जी से किसी को भी कुछ भी दे देंगे क्या? कल उठ के मंत्रीगण ये बोलता है कि एडवोकेट फातिमा को कोऑपरेटिव कमिश्नर के ऊपर ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी बना देते हैं विथ अनबायस्ड अनलिमिटेड पावर। कानून में ऐसा अरेंजमेंट है क्या मैडम? नहीं है। ये तो आपको भी पता है और बाकी लोगों को भी पता है, क्योंकि अगर ऐसा अरेंजमेंट होता तो जो पावर में लोग हैं वो ये सब कानून से खिलवाड़ करते जाते। वैसे भी छोटी मोटी खिलवाड़ तो हो ही रही है, ये तो आपको भी पता है। Yes, sir. The question has been asked deliberately because these messages are being updated on our CHS forum and it is misleading people. So Yes, the purpose of this question was deliberately so that people get aware, not to yes, believe that in is the reason I said कि ये सारी मीडिया की खबरें पढ़िए, वो भी आपके इंटरटेनमेंट के लिए, आपको एक्साइट करने के लिए, अपने आप को सेल्फ ग्लोरीफाई करने के लिए मैंने बड़ी खबर छापी। ये छाप देते हैं वो, है ना? और आप भी उसको वही अंदाज में पढ़िए कि ठीक है, मजा आ गया पढ़ के, बस उसके अलावा और कुछ मत करिए। अपनी रातों की नींद को तकलीफ मत दीजिए, क्योंकि ये सब चीजों का कानूनी तौर पे कोई अधिकार है ही नहीं। अभी बीच में एक और न्यूज़पेपर में कटिंग आई, अरे आपको कंप्लेंट करना है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मेंबरों को कंप्लेंट करना है, एग्रीड मेंबर हो आप, डिस्प्यूटेड मेंबर हो, आपको कंप्लेंट करना है, ओ आपको फाइलिंग फीस देनी पड़ेगी तो ही आप कंप्लेंट कर सकते हो। देखो किस तरह की बकवासबाजी चीजें सामने आई मीडिया में। आई एम यूजिंग द वर्ड डिलिबरेटली, बकवासबाजी इज एब्सोल्युटली ग्रॉस न्यूसेंस। पब्लिक को हैरान परेशान करने के नए नए तौर तरीके बाहर निकलते रहते हैं। एग्जैक्टली। आप बोलोगे फाइलिंग फीस दो, इसका मतलब क्या हुआ? मुंह पे मेरे पट्टी बांध देना है? नहीं, आप पूछ नहीं सकते कुछ भी। मेरा गला दबा देना है, आवाज मेरी दबा देनी है, आप नहीं कर सकते मैडम। पर आप ये ध्यान रखो कि ये हमारा जो देश है, इट इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। बोलने का हक कौन से आर्टिकल में दिया? 21 में दिया हुआ है। 18 से 21 के बीच में आप देखोगे आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिया हुआ है, अपना आवाज चिल्ला चिल्ला के सड़कों में बोल सकता हूँ। एनी लेजिटिमेट, एनीथिंग व्हिच इज लेजिटिमेट, I can shout, I can tell, I have been given the right. And I have been given this right that is recorded in the constitution. And furthermore, it is also recorded in several Supreme Court judgments. Several, एक नहीं, 10 नहीं, 50 मिल जाएंगे। थोड़ा ढूंढने की कोशिश करोगे तो और भी मिल जाएंगे। तो मतलब आप ये कहना चाहते हो कि अरे आर्टिकल को साइड में रखो, हम नहीं मानते। मतलब मैं इंडियन सिटीजन हूँ, मैं तालिबानी सिटीजन थोड़ी ना हूँ। आई एम नॉट ए तालिबानी मैडम, आई एम ए डेमोक्रेटिक कंट्री। तो मैं क्या कुछ भी कर सकता हूँ? कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध में जाके करूंगा? क्यों? जब हाई कोर्ट ने ये बोल दिया, आपको पता है जूही चावला के मोबाइल टावर के केस में, जो हमने रेफर भी किया था, और भी केसेस में, कि आपने फॉल्स PIL फाइल किया हुआ है, आपको मैं 5,000 दंड देता हूँ। तो जब हाई कोर्ट ये बोल सकता है कि आपने फॉल्स कंप्लेंट फाइल किया हुआ है, इसके लिए मेरे पास अधिकार है, मैं आपको 5 लाख रुपए का दंड करता हूँ।
जो ही 4 लाख, 20 लाख रुपए का दंड किया, शायद 20 लाख है या 5 लाख रुपए है। हाईकोर्ट ने ये कहा ना। इसी तरह आप ये अगर बोलोगे कि कंप्लेंट फाइल करने के पहले ला भाई ला, पहले पैसे दे दे मुझे, मेरे जेब में डालने दे, फिर मैं आपका कंप्लेंट एंटरटेन करूंगा। इसका मतलब ये हो गया मैडम कि कोई रेप का केस अगर आप पुलिस स्टेशन में फाइल करने जाते हो, बलात्कार जिसको बोलते हैं रेप का केस, या डोमेस्टिक वायलेंस का केस, या चोरी चकारा का केस, तो पुलिस को ये बोलना चाहिए आपको, नहीं भाई पहले 10,000 रुपए इसका फीस जमा करो, फिर ही हम आपका एफआईआर दर्ज करेंगे। तो वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को क्या हो गया, उसका उसका क्या समझना चाहिए, पहले फीस फाइल करो। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये बोला है कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस नोट होता है तो आपको एफआईआर फाइल करना है, इवन 0 एफआईआर फाइल करना है। मुंबई में हो आप और किसी कारण से आप पुणे में पहुंच गए हो और आपको ये गुनाह का पता चला है, तो आप पुणे में 0 एफआईआर फाइल कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट का ये निर्देश है, सभी को पता है, सारे एडवोकेटों को भी पता है ये चीज को। तो ये चीज एब्सोल्युटली गलत है, ये बोलना कि पहले पैसा लाओ फिर मैं आपका कंप्लेंट फाइल करूंगा। टोटल टू टोटल गलत है, कानूनी दायरे में ये बैठ ही नहीं सकता। Okay, I am concluding this topic. Anybody else wants to ask something? Kashmira Kapidia. Good evening, sir. Sir, just I just said that this major repairs cannot be done by the BOI members. But suppose the same has been approved in the last AGM and the members have said no, major repairs have to be carried out. Then in such a case, is it necessary to get the permission of the deputy registrar? As I told you, if you have heard my lecture fully, I've heard BOA is only a guest. ठीक है, आपका पुराना कामकाज करना, जैसे पुराने कामकाज में ये था कि भाई चलो हमने रीडेवलपमेंट का प्रोसेस पास कर दिया है ना, और रीडेवलपमेंट का प्रोसेस में अब वो कंटिन्यू करना है, तो इसीलिए बीओए या एडमिन या एओए साइन कर सकता है। नहीं मैडम, वैसा नहीं हो सकता। बीओए के डॉक्यूमेंट में इट्स ए लीगल डॉक्यूमेंट, 50 साल के बाद में भी वो काम आने वाला है। रिलेवेंट अथॉरिटीज आर गोइंग टू टेल यू कि ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ने साइन किया हुआ या नहीं किया हुआ है, या कोई सरकारी डीम्ड सर्वेंट ने साइन किया हुआ, जिसको अधिकारी नहीं है, तो दे कैन नॉट डू इट। इफ दे वांट टू डू इट, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू कि उसे अब आगे कैसे लेकर जाना है। थैंक यू सर। And can we have a Zoom meeting? Can we have a Zoom meeting this year for this financial year? Is it necessary to have a physical meeting? You have got all the authority to call for a virtual meeting, Zoom meeting ले लो, हमारे तरह Google Meet की मीटिंग ले लो, Cisco का ले लो, वगैरह वगैरह। There are few other apps also. You have got all the authority to call any of this meeting without taking permission from the cooperative department. Why? Because you are an autonomous functioning body entity under section 227. Okay, so the DR cannot say नहीं नहीं आप मीटिंग नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो। Thank you sir. Thank you. Welcome ma'am. Mr. Naimish, one small question only please. We are running out of time sir. Yes sir. ये BOA अगर अपॉइंट करना है तो इंस्पेक्शन चल रहा है मेरा और गिल्टी उसमें फाउंड हो रहा है, तो अभी इसी वक्त उनको नाम दे सकते हैं 3 जन का इंस्पेक्टर को, या रिपोर्ट आने के बाद देना है? जब तक आपकी कमेटी डिसॉल्व नहीं होती है, डिबार नहीं होती है, डिस्क्वालीफाई नहीं होती है, जब तक पूरी कमेटी एंटायरली रिजाइनेशन नहीं देते हो, तब तक एडमिन, एओ, बीओए की बात भी नहीं हो सकती। Okay. आपका जो काम है वो एग्जिस्टिंग एमसी के दायरे में चल रहा है। सो हेल्स नाउ यू कैन नॉट प्रिज्यूम प्रीएम्प्टिवली कि नहीं हम अपॉइंट करेंगे, पहले ऑर्डर होने दो फिर बाद में देखना। इससे कुछ नहीं हो सकता है। ऑर्डर ही डिसॉल्व कर सकता है एमसी को, या इनको इंस्पेक्टर को राइट है डिसॉल्व करने का, ऑर्डर देने का? डिसॉल्व करने का अधिकार, डिबार करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ डीआर को है। ओके, तो ये डीआर को ऑर्डर, ये अथॉरिटी डीजीआर को भी नहीं है, डीडीआर को भी नहीं है, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को भी नहीं है, और कोई भी कोर्ट को नहीं। ये अधिकार कानूनी तौर से सिर्फ उस वार्ड के कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार को दिया हुआ है। ओके, तो ये या इंस्पेक्टर जो है वो उनको रिपोर्ट करेंगे आफ्टर डीआर। Yes, you have heard in my lecture. You have heard it. Okay.
Next question is by Thank you. Mr. Akshay Misri. One short question only, please. हाँ शॉर्ट सर। Mr. Akshay Misri, please go ahead. हाँ यस सर, मेरा सवाल यह है कि सर सेक्रेटरी और चेयरमैन बहुत टाइम से मेंटेनेंस नहीं भर रहे, तो उसके रिगार्डिंग हम क्या कर सकते हैं? बहुत हमने उनको समझाया, करीब 2 साल से समझाते हैं, लेकिन वो कुछ भी पैसा नहीं देता है और छोटा सोसाइटी है, तो क्या किया जाए? ओके, आपको ध्यान होना चाहिए कि एक सेक्शन 154 में वो अपना डिफॉल्टर मेंबर एमसी में नहीं रह सकता, दे आर ऑटोमेटिकली डिस्क्वालिफाइड। या ओके, सो नाउ या तो आप रजिस्ट्रार को कंप्लेंट कर दो, कंप्लेंट में पिटीशन डालो कि भाई इनको डिसमिस करा जाए बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीजन, ये उनका मेंटेनेंस बिल है। आपको कोई ना कोई प्रूफ तो देना होगा। किस चीज का? कि वो डिफॉल्टर है, आपके सिर्फ बोलने से नहीं होगा। राइट, आपके सिर्फ बोलने से हो नहीं सकता है वो चीज। राइट, हाँ। तो कोई ना कोई प्रूफ तो देना है, क्योंकि अधिकारी को भी कोई भी कार्यवाही करने के लिए एक कानूनी कागज चाहिए जो जिसको आप अर्जी कर रहे हो, और उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए। एक नहीं हो सकता है आराम से। दूसरा, एज ए ऑर्डिनरी मेंबर आप एक दूसरा अर्जी भी दे सकते हो डीआर को अंडर सेक्शन 154B 29 ब्रैकेट 2, जिसमें आप ये उसको कह सकते हो कि ये डिफॉल्टर है, इनके ऊपर सुमोटू मतलब अपने आप अधिकार यूज करके विदाउट फाइलिंग रिकवरी प्रोसीडिंग्स, डीआर हैज द अथॉरिटी टू स्टार्ट रिकवरी प्रोसीडिंग्स ऑन हिज ओन ऑल्सो, अगर सोसाइटी रिकवरी प्रोसीडिंग नहीं फाइल करती है। ठीक है, एक तो रिकवरी प्रोसीडिंग 154B 29 में सोसाइटी रिकवरी प्रोसीडिंग फाइल कर सकती है, और किसी कारणवश सोसाइटी ने अपने फेवरेट लोगों के ऊपर रिकवरी प्रोसीडिंग फाइल नहीं किया, तो ऑर्डिनरी मेंबर क्या कर सकता है? कानून में ये भी प्रोविजन दिया हुआ है कि डीआर को रिप्रेजेंट करो, बोलो साहब ऐसा ऐसा हुआ है, आपके पास अधिकार है इस सेक्शन के अंदर में, आप रिकवरी प्रोसीडिंग का प्रोसेस चालू करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बाय मिस्टर जयदीप शाह। Sir, how can we take action against MIG committee members who are corrupt and who are being partisan outright? करप्शन का मतलब क्या? आपसे पैसा डिमांड किया या they are taking undue advantage of the funds at their disposal. They use it to for their personal advantages. ओके, अभी ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हो कि आपके बोलने से वो करप्ट है, ये कानून नहीं मानता है। ठीक है, तो इस चीज की इंक्वायरी करवानी पड़ती है, इंस्पेक्शन जिसको कहते हैं। राइट, तो एक सेक्शन है 89A, ठीक है ना? हिंदी में क्या कहते हैं 89 को सर? 89 ठीक है, ठीक है। ठीक है ना, मुझे भी पता था कि काफी लोग नहीं जवाब दे पाएंगे, तो ठीक है, हम लोग यूज टू हो गए हैं। तो 89A के अंडर में 100 रुपए का एक टिकट लगा के एक अर्जी डालो, और आपको जो पॉइंट बोलना है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, उसमें सारे कवर कर लो। कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो भी अटैच कर दो। डीआर के पीछे पढ़ो, रिप्रेजेंट पीछे पढ़ने का मतलब है तो बार बार रिप्रेजेंट करो, ऑर्डर निकालो, इंस्पेक्शन होने दो, उसमें ये आने दो कि कितना पैसा खाया हुआ है, वाउचर बने या नहीं बने, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ वगैरह वगैरह। हमारे एक मेंबर है अपने ग्रुप में अभी जिन्होंने प्रश्न किया, मिस्टर नईमेश करके, उन्होंने ये प्रोसीजर किया हुआ है, काफी हद तक वो सक्सेसफुल भी हुए हैं। एंड हमने इस पर एक वेबिनार भी किया हुआ है। आप हमारे वेबसाइट में जाएंगे तो आपको इसका भी एक वीडियो मिल जाएगा, वो देख लीजिए, समझ लीजिए, आपको बहुत आसान हो जाएगा। Thank you, thanks to you, sir. Because of you, I have succeeded. Okay. हाँ sir, because the MC is now harassing the individual member and not doing any work for my benefit, and there is a lot of leakage in my house which they are not attending to, and they are not providing the proper parking space for the car. They are themselves enjoying dual parking places or special parking places, but they don't provide
these मिस्टर things. जयदीप शाह, ऐसा है कि आप जो भी बोल रहे हैं मैं हाँ उसे एक वर्ड देता हूँ, ग्रम्बलिंग. डोंट फील बैड, Okay. बट दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज ग्रम्बलिंग. Hmm. क्यों पता है? क्योंकि आपके रहते हुए, आपके बाकी मेंबर्स के रहते हुए हाँ. ये सारी चीजें हो रही हैं. Right. आप सोसाइटी के इक्वल मेंबर हो, Okay. ठीक है? अगर आपके रहते हुए ये सारी चीजें हो रही हैं Hmm. और सोसाइटी मेंबर आपको बेवकूफ बना रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, वगैरह वगैरह कर रहे हैं, आपको Right. एजीएम में आपका वीडियो म्यूट कर देते हैं, एजीएम में आने के बाद में आपको धमकी देते हैं, वो Right. क्यों? क्योंकि आप खुद वीक हो उसके अंदर. खाली Okay. एमसी को भी पता है कि भाई ये खाली बड़बड़ करने वाला आदमी है. कुछ करेगा नहीं. अलग अलग अथॉरिटीज को कंप्लेंट करो. आप Okay. करते ही नहीं हो. कई बार नहीं करते हम लोग इसके लिए, क्योंकि जानकारी नहीं है. इसके लिए तो हम ऐसे वेबिनार्स करते हैं. आप हमारे Right. पिछले वेबिनार्स देखेंगे तो हमने उसके अंदर भरपूर होलसेल में भर भर के आपको एक्शन कैसे कैसे, क्या क्या परिस्थिति में क्या क्या लेना है, सब कुछ दिया हुआ है. Okay. हमने एक्टिविस्ट, नईमेश जैसे एक्टिविस्ट है, यजदी मोतीवाला जैसे एक्टिविस्ट है, उनके हमने वेबिनार्स किए हुए. उन्होंने अपने आप बीती, अपने एक्सपीरियंसेस बताए, शेयर किए हुए हैं. Right. उनको सुनिए, आप समझिए उस चीज को. आपका काम बहुत आसान हो जाएगा. लीकेज Right. हो रहा है, सोसाइटी को एक रिटर्न नोटिस दो. आप खाली बड़बड़ करके ओरली बोल रहे हो तो मत करो, पहले एक रिटर्न नोटिस दे दो, ठीक No, है? I have written complaints for about last 15-17 years, but they are saying हाँ करेंगे and then ठीक they है. just अभी आपका लेकिन ये है कि 17 साल तक आपने हाँ. वही चीज को घसीटा. हाँ. Yes, that was a mistake. जब They आपको ये have पता promised. है, जब आपको ये पता है कि 17 साल से एक्शन नहीं हुआ, तो Right. आपको ये भी समझ लेना चाहिए कि जब 17 साल से एक्शन नहीं हुआ है तो आगे भी नहीं होने वाला है. Correct. स्वाभाविक चीज है ना सर ये चीज. Yes, 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 true. इजंट इट माय फ्रेंड? Absolutely. तो देन यू गो टू द बीएमसी कमिश्नर. आपका वो जो वार्ड का कमिश्नर है, अगर आप पी वार्ड में रहते हो तो पी वार्ड के ऑफिस में जाओ, वहां पे डेजिग्नेटेड ऑफिसर है, एएमसी को मिलो, असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर को बोलो साहब मेरे को ऐसे ऐसे लीकेज हो रहा है. एक अर्जी दे दो उनको सेक्शन 381 के अंडर में, I बीएमसी have एक्ट complained to 381. the F North Ward where I stay, and no action was taken for about a month. फॉलो अप करना पड़ता है सर, फॉलो अप करना पड़ता है. लोक अदालत में जाइए. Hmm. कोशिश Right. करने से आपको पता होगा. एक छोटा सा ऑफ बीट इंसिडेंट सुनाता हूँ. आप सभी को इसकी कहानी पता होगी, सावित्री की Hmm. और सत्यवान की. सर सभी लोगों को पता है वो कहानी? Right, very पता true. है. वो पीछे Yes, पड़ी, एक बार नहीं 50 बार पीछे पड़ी और अपने डेढ़ पति को रिटर्न लेकर आए. तो पीछे पड़ने से काम होता है. ये ऐसे लेसन्स हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया हुआ है, Hmm. है ना? हमारे गीता सार में, गीता सार को क्या बोलते हैं वो, भागवत गीता में क्या जो भी है वो, उसमें भी लिखा हुआ है सर. तो खाली हम लोग को जानकारी नहीं है, इसके लिए हम लोग करते हैं. एनीवे, Yeah, okay. थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग. एनीबडी thank you. एल्स? हेमंत जी, मैं बोलना चाहूंगा. मिस्टर हरिया, प्लीज गो अहेड. वन स्मॉल क्वेश्चन एंड स्मॉल क्वेश्चन. Yeah, sir. First of all, important question. How is your health, sir? I I'm doing fine, and Very good, thanks to you people's blessings, and especially एक हमारे मेंबर है सीमा त्यागी जी, जिन्होंने हमारे लिए प्रे किया, तो शायद अच्छा लगा. एनीवे सर, यस मिस्टर मितेश, वेलकम बैक सर. थैंक यू. गो अहेड. Yes, sir. I understood that the administrator or BOA, he is like deemed to be a government officer, Deemed government servant, deemed government servant. So, not officer. okay, so if it falls under government, then the anti-corruption can take action against this person. Yes, 1000%. डीम्ड गवर्नमेंट सर्वेंट हो या गवर्नमेंट सर्वेंट हो या क्वासी गवर्नमेंट सर्वेंट हो, जैसे PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के जो सर्वेंट्स होते हैं, they are not classified as government servants, but yet they are also covered under Prevention of Corruption Act. तो अगर आपके पास अच्छा खासा सबूत है, एविडेंस है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, विटनेसेस है, वगैरह वगैरह वगैरह, तो आप सिस्टमेटिकली उन पर कार्रवाई कर सकते हैं. आप लोकल एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफिस में जा सकते हैं, वहां के PRO को मिलो, पर्सनल रिलेशंस ऑफिसर को मिलो,
बातचीत करो, वो आपको गाइड करेंगे कि इसमें क्या क्या कार्यवाही हो सकती है। ओके, एनीबडी एल्स वांट्स? मिसेस विजू, गो अहेड विथ योर स्मॉल क्वेश्चन प्लीज। हाँ जी, जैसे आपने बताया ना, अंडर 89A सेक्शन द ऑफिसर केम टू द सोसाइटी आफ्टर माय कंप्लेंट टू, तो वो ऑफिसर आने के बाद में सर्वे करने के लिए, तो ही वेंट टू चेयरमैन्स हाउस एंड ही क्लोज द डोर, सो बिटवीन देम दे कॉम्प्रोमाइज एवरीथिंग and he prepared the survey report also accordingly, very compromised and very pleasing. So then he was trying to pursue me कि आप अभी कितना seriously क्यों ले रहे हो, ये ले रहे हो, वो ले रहे हो. So he didn't prepare the report properly. After the report, I collected the report what he has marked. तो उसने कुछ भी किया नहीं. उसके बाद में the P ward officer was transferred under corruption from there. Then whenever the AGM is taking place, this chairman, secretary and everything, they are themselves deciding whatever it is. Many of the members, they don't understand कि क्या हो रहा है, law क्या है, कहाँ पर हमको हाँ बोलना चाहिए, कहाँ पर ना बोलना चाहिए. So they Yes, keep madam. quiet or they just nod their head, and this chairman, secretary and there are some members included into their gang, you know, they write whatever they want. And they make it sure that I am not recording their conversation or video recording anything. And Okay. accordingly, very conveniently, they prepare the AGM minutes also. Now you have so many complaints against the committee, and now Madam, I am tell me, also I've hoping understood not your to query. appoint, आप मुझे ये बताइए कि आप सोसाइटी में भाड़े करू हो क्या, उनके No. गुलाम हो क्या, आप उनके टेनेंट हो या कौन हो आप वहां पे? आप उनसे इक्वल हो या वो और कुछ है और आप कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ है क्या मैम? कुछ भी नहीं है. I'm staying here in my own house for 31 years and I'm a committee member now. And since I started asking them legal questions, crossing them and exposing them, they went ठीक all है, against. okay. Now henceforth, I suggest all the members over here, all our friends, क्वेश्चन आंसर्स ओरली तोंडी नहीं करना है, ठीक है? बिल्कुल भी नहीं करना है. आप रिटर्न कंप्लेंट्स दाखिल करना शुरू करो. एक किया बार है. नहीं 50 बार करो. एक बार नहीं 50 बार करो. एक डिपार्टमेंट में नहीं 10 डिपार्टमेंट में करो. डीआर के ऑफिस में करो, डीजीआर के ऑफिस में करो, डिविजनल ज्वाइंट रजिस्ट्रार, उसको अधिकार नहीं है फिर भी कार्यवाही करो, वो कुछ ना कुछ एक्टिवेट करेगा. वो पुणे कमिश्नर के ऑफिस में एक्टिवेट करो, लोक अदालत में एक्टिवेट करो, उसे कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री को करो, करते जाइए. आप ये मत सोचिए कि ये सब बेकार जा रहा है ना? जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर सावित्री अपने पति को लेकर आ सकती है वापस पीछे पड़ के, इसी तरह आप भी पीछे पड़ के अपना काम करवा सकते हो. वैसे आप पी वार्ड से हो, वैसे मिस्टर नईमिश भी ऑल्सो पी वार्ड से हैं. उनको भी 2 साल का स्ट्रगल हुआ इस चीज को लेके, क्योंकि डीआर ने उनसे के साथ भी टालम टोल वो करते चले गए. लेकिन अल्टीमेटली आज पीछे पड़ने के बाद में इंक्वायरी हुई और शायद उनकी इंक्वायरी फेवरेबल इंक्वायरी हुई. इसी तरह आप भी कर सकते हो. उनका एक वेबिनार का वीडियो हमारे वेबसाइट पर लोडेड है, आप ढूंढ लीजिए, मिलेगा. सुनिए उन्होंने क्या क्या किया, समझिए. मिस्टर नईमिश से कांटेक्ट करिए, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करिए, बातचीत करिए. बातचीत करने से कई दरवाजे खुल जाते हैं, हमारे दिमाग की खिड़की भी खुलती है. कोशिश करिए सर, हो जाएगा मैम, हो जाएगा. ओके, एनी अदर क्वेश्चन बाय एनीबॉडी एल्स? ओके, मिस्टर रवि शेट्टी हैज वन क्वेश्चन. यस, गो अहेड. अरे या बीओए जो अपॉइंट हुआ है हमारे सोसाइटी में, उसने हाँ जी. धड़ल्ले से 2-3 जन का नाम ट्रांसफर किया है. फिर उसने एनओसी भी दिया है फॉर द क्या बोलते हैं इसके लिए, जो बैंक लोन लेते अलग हैं अलग इसके, एनओसीज. ओके, हाँ. हाँ बैंक लोन के लिए. और मैंने इसके लिए उसको बहुत पर्टिकुलरली लेटर दिया था, ये सब आप नहीं कर सकते हो, फिर भी उसने किया. तो अभी क्या उसके करना खिलाफ बीओए के खिलाफ आप इंक्वायरी चालू करवाइए, इन्वेस्टिगेशन अंडर 89A. 89A में इंस्पेक्शन होगा तो पता चलेगा कि इनको अधिकार है या नहीं है.
डेप्यूटी रजिस्ट्रार को बोलिए कि आपके प्रतिनिधि है, बीओए आपका प्रतिनिधि तो है नहीं, सोसाइटी का प्रतिनिधि नहीं है, क्योंकि डीआर के सिग्नेचर सही सिक्के से तो वो अपॉइंटेड है, उसका प्रतिनिधि है। उसको पूछो कि भाई आपके प्रतिनिधि ये सब भूल गपालेबाजी कर रहे हैं, आप कार्रवाई करिए इस पे। वो क्या बोलते हैं कि मैंने लेटर दिया है डीआर को, लेकिन वहां से हमको जवाब नहीं आया, क्योंकि अभी सब ये चल रहा है ना कोविड, तो हमने जो कर भी दिया। कुछ है, जब तक रिटर्न में एंडोर्समेंट नहीं आता है, आप कंप्लेंट करते जाइए, कोऑपरेटिव मंत्री को भी कंप्लेंट करिए, वहां पर भी सुनवाई होती है सर। ओके, एनी अदर क्वेश्चन बाय एनीबॉडी एल्स बिफोर वी कंक्लूड? हमारे पास 2-3 मिनट और है। Sir, 89 के बाद they wanted the number to join the group. My number is 9820 9820, yes. 174 108. Thank you so much. I got it, sir. Thank you. Oh, no problem. Anybody else? Yeah. One small question. One of the society has done 89A in 2019, and the report was not favorable. But then no action was taken. I asked for the rectification report from department that whether they have received or not. I asked it in RTI, but they have not given. So now what is a recourse for me? Because 89 हो गया, उसमें सब आया कि भाई आपने गलत किया है, ऐसा है, लेकिन आफ्टरवर्ड्स क्या उसका? डीआर साहब को बोलो कि उस पर एक्शन लेने को बोलो, कोऑपरेटिव मंत्री को लिखो, पुणे कमिश्नर में लिखो। आप खाली छोटे सी चीज को करके बैठ जाते हैं और ईमेल भेजते हैं यहाँ वहाँ, उसके वजह से कोई कार्रवाई नहीं होती है कहीं पर भी। डिपार्टमेंट जो भी कुछ है, करप्ट है, अच्छा है, ये है, वो है, जो भी कुछ है, लेकिन उनके पास में हकीकत में वर्क ओवरलोड है। सभी को पता है ये चीज। हम लोग ये तो नहीं बोल सकते हो ना कि डिपार्टमेंट है, आपको हम गुलाम की तरह कुछ भी बोलेंगे, आपको हमारा काम करना है। बिकॉज आपकी तरह आप डिपार्टमेंट में चले जाओ, सिर्फ 2 घंटे वहां पे रुको, 2 से 5 के बीच में, 2 या 3 घंटे, और देखो, अभी कोविड के टाइम की बात अलग है, लेकिन देखो कि उनके पास कितने लोग होते हैं, कितनी हियरिंग चलती है, कैसे कैसे लोग आके कैसे कैसे बातें करके जाते हैं। ये तो गनीमत है कि डीआर ऐसे उल्टे सुल्टे तेज आवाज में बात करने वाले या बड़बड़ करने वाले या उल्टा सुल्टा एलिगेशन लगाने वाले के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं करता है। उसकी इंसानियत समझ लो। लेकिन अगर उसके पास अथॉरिटी है उसके पास अथॉरिटी, मेरे कैबिन में आके इसने चिल्लाया, तो वो उसको अरेस्ट भी करा सकता है। यू गॉट इट? इसीलिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, ओरली बातचीत करना सब जगह बंद करिए, ओनली रिटर्न। 10 जगह रिटर्न करिए, 10 डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, आप ढूंढेंगे तो आपको और 2 डिपार्टमेंट मिल जाएगा। Thank you, sir. It was very good. We learned a lot. Thank you, sir. Welcome, everybody. No, sir. Thank you. Fatima, Thank you for such a wonderful session. Sir, where is your website? chshealthforum.com. CHS Health Forum. Okay, sir. Thank you. अगर आपको मेरा इनवाइट मिला हुआ है, जिसके वजह से आपने आज ज्वाइन किया, तो उसमें हमारा वेबसाइट का आईडी, मेरा मोबाइल नंबर, मेरा नाम, सभी कुछ दर्ज है सर उसके अंदर। Right, sir. Thank you, sir. Okay. I request advocate. I got the invite through a friend, so yeah, okay. Okay, no problem. सर, कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री को कैसे कांटेक्ट करना होगा? आई डन लॉट ऑफ राइटिंग, एक उसका सिर्फ गाइडेंस दे देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ईमेल ढूंढ लो सर, वेबसाइट में अवेलेबल है ना। कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री डाल के एक लेटर भेज दो, कोऑपरेटिव मिनिस्टर मंत्रालय मुंबई, ये 3 अक्षर डाला, आपकी चिट्ठी कोऑपरेटिव मिनिस्टर के डेस्क ऑफिसर को पक्का मिल जाएगी। ओके, और ट्विटर वगैरह कुछ है उसमें वर्क करता है? वो सब मैं अभी मेरी उम्र के हिसाब से ना मैं ट्विटर देखता हूँ, ना फेसबुक देखता हूँ, और ना कोई खास व्हाट्सएप देखता हूँ, है ना। जैसे डिपार्टमेंट के पास वक्त नहीं है ये सब चीजों के लिए, वैसे ही एज ए प्रोफेशनल मेरे पास भी वक्त नहीं है। बट आप सबको हेल्प करने के लिए, जितना मेरा नॉलेज है मैं आपको देने के लिए मैं ये वेबिनार ऑर्गेनाइज करता हूँ। सर, बहुत ही थैंकफुल है आपके लिए। आप जो कर रहे हैं वो काफी यूजफुल हो रहा है और नॉलेज शेयरिंग बहुत अच्छी तरह से हो रहा है सर। बहुत स्प्रेड कर रहे हैं हम भी, आपकी गुडविल हम लोग स्प्रेड कर रहे हैं सर। Advocate Fatima, I'll request you to speak out a few words before I conclude this session. Yes, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Wish Thank you you, good मैडम। health, आपने sir. बहुत बड़ा योगदान दिया हुआ है एजीएम के डेट को एक्सटेंड कराने में।
नहीं सर, आपने that was जितना प्रयत्न necessary and किया, because आपने जितना प्रयत्न किया मैडम, जो कितनी भी कोशिश किया और टाइम पे हो गया, वो बहुत से सोसाइटीज आपको थैंक यू बोलना चाहिए। बहुत से मीन्स पूरे महाराष्ट्र के सोसाइटी शुड थैंक यू कि आपके and they should प्रयत्नों thank से you ये as सब। well, sir. It's not only my effort, sir. Your contribution is also there in it. So you deserve more accolades than me. And another Okay. thing is, sir, that all these efforts are being taken to share this knowledge. And Yes, I ma'am. hope all our members and friends take the initiative and follow the path that you have been setting. And like you today mentioned, that instead of verbally speaking, start writing letters. As a representative of CHS Forum, I can also go and issue the letters in Pune personally to the office. Whatever the charges, traveling and all, people can give it to me. I can do that also, sir. So Okay. we can take the benefit, all of us, and Yes. proceed further so that, everything is in place. The managing committee, they do their job well, and all the laws and everything are properly followed, and members are not taken for a ride. What you say, sir? Your opinion, please. Madam, managing committee, they start mismanagement only because of our own ignorance, And our laid back own attitude. apathy, our own fears. जब ऐसा है ही है तो आप ग्रम्बलिंग, बैबलिंग वो सब मत करो, है ना। अगर Yes. प्रयत्न खुद नहीं कर सकते हो, अगर आप खुद इलेक्शन में नहीं आ सकते हो, तो ऐसे करप्ट लोग सामने आएंगे ही आएंगे। आपके नाकामी की वजह से, आपके अपैथी की वजह से ऐसे करप्ट लोग, या लेट मी पुट इट वेरी वेरी मोर डेडली, या इन बैड वर्ड्स, करप्ट लोग और परेशान करने वाले लोग आएंगे। अगर आपको ये सारी चीजें पता है और आपको ऐसा लगता है कि आप अच्छा मैनेजमेंट कर सकते हो, तो आपको सामने आना चाहिए। आप नहीं आते हो मैडम, आप बिल्कुल भी नहीं आते हो। ये मेरा बहुत सालों का तजुर्बा है। किसी को बोलो कि आप मैनेजिंग कमेटी का इलेक्शन लड़ो, उसका फर्स्ट इमीडिएट नी जर्क रिएक्शन, नहीं नहीं नहीं, हमको नहीं आना, वो झंझट है। इसका मतलब आप चाहते हो कि और कोई आपके लिए झंझट लेते रहे। Isn't it? It means that आपको झंझट में नहीं पड़ना है, लेकिन आपको अपना बंदूक दूसरे के कंधे के ऊपर रख के चलाना है। बराबर है सर। How is That it is what possible, people मैडम? do. हाँ, बराबर है सर। आप घर में खाना बनाते हो तभी तो खाते हो ना ढंग से। मतलब आपको ये पता है कि मैंने मेरा घर का खाना खाया है तो मेरा पेट भी ठीक रहेगा और मेरी तबीयत भी ठीक रहेगी। आप जाके वड़ा पाव क्यों नहीं खाते हो हर रोज? हर रोज खाओ, सवेरे भी, दोपहर को भी, शाम को भी। आप जाके वो चाइनीज खाओ, सवेरे दोपहर शाम को, ये वो सब कुछ करो और फिर देखो कैसा होता है। तो आप घर का काम तो नहीं करना चाहते हो, लेकिन बाहर का सब कचरा पेटी का काम करना चाहते हो। तो सोसाइटी तो ऐसे ही चलती है। जिनको हिम्मत है वो करप्ट हो जाते हैं। पावर This is a करप्ट्स। lesson, sir, for all the Yes. members. There is a saying, power corrupts. Absolute power corrupts absolutely. Absolutely. Very true, sir. Very truly said, sir. Hmm. Your example of Satyavan and Savitri was the best one for the day. It is because all our friends over here know about this story. वो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। मैंने ये स्टोरी शायद मेरे सेकंड या थर्ड या फोर्थ स्टैंडर्ड में हम लोगों को सुनाई गई होगी। Yes, sir. Okay, now I also invite anyone who wishes to speak at our Saturday evening webinars and share your good and bad experiences of your society. All advocates, all society members who wish to speak may come forward, support and motivate other members. Please send me a WhatsApp message if you are interested to. I will arrange, I will guide you as to how to speak, etc., etc. So don't feel hesitant, please come forward. Now, with the permission of all the participant friends, we will conclude today's webinar. Thank you all friends for attending this knowledge sharing webinar. Wishing all friends a healthy and peaceful life forward. Thank you everybody and goodbye everybody.